So a very warm welcome to all the participants, each and every one. So myself, CA Saurabh Gupta. I welcome you all on behalf of Chamber of Chartered Professionals. So we are आज हमारे साथ विभोर कपूर जी हैं. Who will be taking session on how does a banker does the credit appraisal. So it is very important going forward. All the businessmen would be required to take credits, and I think we as a chartered accountant can play a very good role in that. I also introduce CA Vijay Kumar Gupta to all of you. CA Vijay Kumar Gupta is a co-founder of our Chamber of Chartered Professionals. He is also currently serving NIRC, Regional Council of NIRC of ICI nowadays. He is an elected member there. So Vijay ji, I welcome you. Thank you. So आज का टॉपिक जो है काफी इम्पोर्टेंट है. विभोर जी, we welcome you again. And जिस हिसाब से credit appraisal, we are all living into difficult times. So I was just referring to some basics of our credit appraisal things. I think वहाँ पे 4-5 चीजें जरूरी होती हैं. These are called as 5 C's, जिसके अंदर character, capital, इस तरह की चीजें आती हैं. तो I believe going forward conditions आती हैं. So going forward, I believe कि character would be very important for a borrower, for a banker to understand to whom to lend and whom to not. But I believe Vibhor ji हमारे साथ है, he would be guiding us best on this. So I request Vijay Gupta ji to please welcome Vibhor ji and also introduce him to all the audience. Over to Vijay ji. Thank you, Saurabh ji. First of all, good evening each one of you. आपका सभी का चैम्बर ऑफ चार्टर्ड प्रोफेशनल्स में आपका स्वागत है. चैम्बर ऑफ चार्टर्ड प्रोफेशनल्स इसको तकरीबन 6 साल हो गए. 2014 में इसका फॉर्मेशन हुआ था और अब लॉकडाउन की वजह से रेगुलर हमारे वेबिनार्स चल रहे हैं. आज का हमने टॉपिक थोड़ा सा स्पेशल चूज किया. विभोर कपूर जी इज ए एक्स बैंकर. इन्होंने तकरीबन 14 साल अपने बैंकिंग सर्विस में सर्व किए. नाउ ही इज प्रैक्टिसिंग एज ए बैंकिंग प्रोफेशनल. हाउ टू हैंडल द बैंकिंग फाइनेंस. आज की डेट में या पहले के जमाने में भी फाइनेंस की जरूरत तो सभी को होती है. बैंक क्या क्या स्कीम्स निकालता है, या रिजर्व बैंक या सेंट्रल बैंक क्या क्या स्कीम्स लॉन्च करता है अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द बिजनेस एंटिटी. तो कई बार हमें पता नहीं होता है कि किस तरह की क्या सब्सिडी मिलनी है, क्या डॉक्यूमेंट्स देने. हम इंटाइटल होने के बावजूद भी वी विल नॉट गेट द क्रेडिट फ्रॉम द बैंक. तो अप्रेजल कैसे तैयार किया जाता है इन फ्रंट ऑफ द बैंक, कि हम बैंकर को अपना अप्रेजल दिखा सकें, जिससे कि उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है उस चीज को हम फुलफिल कर सकें. तो इसके लिए आज विभोर कपूर जी आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताएंगे, क्योंकि टाइमिंग हमने 1 आवर 30 मिनट्स का सेशन रखा है. इसके अंदर मैक्सिमम पॉसिबल डिस्कशन विभोर जी के साथ में इंटरेक्टिव सेशन रहेगा. जो भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे वो भी ड्यूरिंग द सेशन ही लिए जाएंगे. एंड ही इज क्वालिफाइड इन नवंबर 2004 एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड आफ्टर दैट सर्विंग इन द बैंकिंग इंडस्ट्री. फ्रॉम लास्ट ईयर ऑनवर्ड ही इज working as a practicing professional. Over to Vibhor ji. Vibhor ji, are you listening? हाँ, आपकी वॉइस कम आ रही है विभोर जी. हाँ ठीक है, थैंक यू. Just hold on. Now it's okay. You are audible. Thank you, Vijay ji, and thank you, Saurabh ji, for giving me this opportunity for addressing everyone in this lockdown period on this critical aspect, which is very close to my heart, because 14 साल से मैं यही करता रहता day in day out. Saurabh ji, हाँ जी. Screen sharing is on. Screen sharing आपको just a minute. Yes, screen sharing is on. On the Yes, allowed. So I request everyone, if you have any questions, so you can use the question and answer section to raise your queries, and we will be looking at all the queries and we will try to ask the relevant queries. Although we will suggest that you take your queries towards the end of the session, so we will try to address maximum queries during the session. And I would also thank Chamber of Chartered Professionals for giving me this opportunity. So as I was speaking कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा क्लोज है मेरे हार्ट के, क्योंकि 14 साल इन डिफरेंट बैंक्स इन डिफरेंट कैपेसिटी आई वाज डूइंग क्रेडिट अप्रेजल फॉर वेरियस कॉर्पोरेट्स, बी इट अ बिजनेस बैंकिंग कॉर्पोरेट जो छोटा होता है, और इट अ मिड कॉर्पोरेट्स और अ लार्ज कॉर्पोरेट बैंकिंग. सो ब्रॉडली व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड in this webinar is what are the prevailing RBI guidelines on this topic, what are the process followed by banks while
अंडरटेकिंग क्रेडिट अप्रेजल, बिकॉज हर बैंक अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग क्रेडिट अप्रेजल्स करता है, अलग अलग प्रोसेसेस अप्लाई कर रखे हैं. रेजोल्यूशन ऑफ क्रेडिट क्वेरीज, it's a very important thing, because क्या होता है कि प्रपोजल तो हम दे देते हैं, but there are credit queries and if you are not able to answer them properly, या तो वो हमारा प्रपोजल अटक जाता है कहीं, या टाइम उसमें बहुत ज्यादा लग जाता है. सो रेजोल्यूशन ऑफ क्रेडिट क्वेरीज also I will try to address in this webinar. Lastly, handling customer needs more efficiently in terms of pricing. हमें क्या प्रोडक्ट देना चाहिए कस्टमर को, in terms of probability of our successful proposal being handled by bank, in terms of timelines. So ये सब चीजें मैं ट्राई करूंगा इस वेबिनार में कवर करने की. Broadly, RBI acts like a central bank for India. Concept of central banking started late in 1600s when the first bank was set up by Swedish Central Bank. 1684 में हुआ था. Then 1694 में Bank of England आया. RBI was set up in 1935 and started operations on 1st April. So it's a very old organization. RBI 5-6 things करता है broadly. It acts like a price stability organization. It acts like a financial stability organization by monitoring banks. It acts like a currency management, forex management करता है, development work करता है, other नए नए products लाने के लिए, और research and publication करता है. If you want to further read what RBI does, what are the different departments in RBI, you can always. विभोर जी, आपकी आवाज में थोड़ा सा इको हो रहा है, एक बार आप देखेंगे? मैं हेडफोन्स यूज कर लेता हूँ शायद. I think that हाँ, मतलब वॉइस इज क्लियर बट इको हो रहा है. Is it better now? Yes, it is better now. So basically, जैसे मैं बता रहा था, RBI के 6 functions होते हैं, broadly 6 functions होते हैं: price stability, financial stability in terms of managing banks, currency management, forex management, research and development functions, and lastly publications, जो हमारे पास monetary reports आती रहती हैं, RBI करता रहता है. So we can always go to RBI, read lot of circulars and publication which it does. जगह जगह पे मैंने जहां पे RBI गाइडलाइंस का मैं रेफर करूंगा. I have tried to highlight those RBI guidelines in the same presentation, and then in the last slide I have also done a compendium of whatever RBI circulars or guidelines which I am referring to in this webinar. So basically, first of all, let's understand what does a bank do. Bank, depending on various customers, bank provide different products, be it car loan, individual loan, unsecured loans, LAP, home loans, and then lending to various corporates. In this webinar, we will only focus on, because of the proximity of time and अलग-अलग methods, अलग-अलग situations के लिए adopt होते हैं, so we will be focusing more on what banks, how does a bank assess lending to a corporate, which is MSME and mid corporates. So technically, companies having turnover from, let's assume, 10 to 15, 20 crores to 700-800 crores is what we will primarily focus in this webinar. की basically वो क्या-क्या banks, what are the various steps it follows, what are the various methodology, and what are the RBI guidelines on that matter. If we talk about lending to a corporate, broadly we can divide into 2 parts: short-term lending and long-term lending. Short-term lending is anything which is given to for a less than a year or up to 1 year, which is called as a working capital finance. Again, working capital is divided into fund-based facilities and non-fund-based facilities. Fund-based facilities consist of cash trade and overdraft facility. The basic difference between both of them is that in overdraft facility there is no hypothecation of current assets. So technically collateral-backed lending होती है ये. This is more applicable for traders or for service industries. Then there is an export credit. We have to understand clearly ये क्या होता है. This is a facility given to an exporter, wherein जहां पर बैंक 2 टाइप ऑफ क्रेडिट देती है: प्री शिपमेंट क्रेडिट, पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट. प्री शिपमेंट क्रेडिट कस्टमर्स को मिलता है फॉर प्रोक्योरिंग ऑफ रॉ मटेरियल, कन्वर्जन इनटू फिनिश्ड गुड्स. वन फिनिश्ड गुड्स इज शिप्ड, इट बिकम्स अ पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट, एंड फाइनली पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट नॉक ऑफ हो जाता है. RBI in detail has stipulated guidelines on export credit. It's there in circular. You can always go to and refer to master circular on export credit. उन्होंने टेनर बताया है. इनिशियली प्राइसिंग डिफाइन की थी, बट इन द लेटेस्ट सर्कुलर्स दे हैव डीरेगुलेटेड प्राइसिंग. सो but it can be, but banks are charging either in dollars, the pre-shipment or post-shipment credit, or you can get available in rupee.
आइदर आपको डॉलर में लेना चाहिए एक्सपोर्टर को फैसिलिटी, या रुपी में लेना चाहिए, डिपेंड अपॉन हिज हेजिंग पॉलिसीज। बिकॉज अगर आप डॉलर में लेते हैं तो आपको हेज नहीं कर पाए, आप जो फॉरवर्ड प्रीमियम है वो नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि आपको डॉलर में मिल रहा है, जो डॉलर से डॉलर में नॉक ऑफ होगा। Wherein if you get in rupee, the advantage is at different point of time RBI allows subventions on these rupee credits. So एक बार वो आपको थोड़ा सा मैथमेटिकल देखना पड़ेगा कि आपको रुपी में बेटर हो रहा है या डॉलर में बेटर हो रहा है। बट एनीवेज दिस इज बेटर एंड चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस देन योर OD and CC. सो अगर आप एक्सपोर्टर को फंडिंग करना चाहते हैं तो प्लीज अवेल एक्सपोर्ट क्रेडिट। Non-fund based limits में we would also understand LC assessment, bank guarantee assessment in this webinar. मैंने छोटे से template बना रखे हैं, you can always ping to me and get those basic templates of LC assessment and the bank guarantee assessment. Trade credit, what is trade credit? Trade credit is nothing but buyers and suppliers credit. Again, RBI has put a definition and a master circular on trade credits. After Nirav Modi case, before Nirav Modi case, the trade credit was basically available in form of letter of undertaking or letter of comfort, but उसके बाद RBI ने मना कर दिया प्रोडक्ट्स। सो आज की डेट में ये प्रोडक्ट्स बैंक गारंटी के थ्रू ऑपरेट होते हैं। Indian banks provide bank guarantees to its foreign counterparts or foreign banks against which you get these buyers or suppliers credit. RBI has defined automatic route and approval route for these trade credits. उन्होंने ऑल इन सीलिंग भी दे रखी हैं, जिसके लिए आप बता सकते हैं। बट एनीवेज दिस ट्रेड क्रेडिट इज मच मोर चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस देन द फंड बेस्ड लिमिट। सो अगर आपके पास LC फैसिलिटी है और आप उसको ड्यू डेट पे पेमेंट करना चाहते हैं तो एक मेथड है कि आप अपने CC या OD को डेबिट करवा सकते हैं। दूसरा मेथड है आप ट्रेड क्रेडिट ले सकते हैं, उसको इलॉन्गेशन कर सकते हैं। सिंस ट्रेड क्रेडिट इज अवेलेबल इन डॉलर, इट्स मच मोर चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस। हाउएवर आपको अपना हेजिंग पॉलिसीज भी देखना पड़ेगा कि आपको ऑल हेज कॉस्ट क्या आता है व्हाइल कंपेयरिंग CC वर्सेस द ट्रेड क्रेडिट पार्ट। लॉन्ग टर्म, अगेन कमिंग बैक टू द लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, द लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस इज एनीथिंग व्हिच इज मोर देन 1 ईयर। ये इनको हम मीडियम टर्म लोन, रुपी टर्म लोन, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के रूप में बोलते हैं। इट कैन बी ड्रॉन आइदर इन रुपी फॉर्म और इन FCY फॉर्म, व्हिच इज फॉरेन करेंसी, from dollar, euro, depending on if you are an exporter, depending on the currency or the country to which you export. Capex LC, it's an important concept and interesting concept. जब trade credit की बात करते हैं तो RBI define trade credit in two parts: capital goods and non-capital goods. Non-capital goods, which is raw material, trade credit is available for 1 year. So, आप non-fund based limit for working capital can be only available for 1 year. जब आप कैपिटल गुड्स की बात करते हैं आप 3 साल के लिए अवेल कर सकते हैं। सो टेक्निकली इफ यू आर इंपोर्टिंग मशीनरी, इट इज बेटर टू हैव अ कैपेक्स LC स्ट्रक्चर इन योर प्रपोजल, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपकी कॉस्टिंग कम हो जाएगी और वो आप फैसिलिटी 3 साल तक एंजॉय कर सकते हैं। वो आप 5 साल तक भी कर सकते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्टेड रेगुलेशंस हैं, बट 3 साल तक तो आप नॉर्मली एंजॉय कर सकते हैं। द लास्ट इज ECB। हम सब ने ये सुना होगा एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स इन बॉन्ड्स। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स ही हम ज्यादातर सुनते हैं। This is again a restricted product. Master circular of RBI on ECB is there, which states कि basically किस पर्पस से ECB हम ड्रॉ कर सकते हैं। What is the minimum average maturity जो उसको बोलते हैं? There is an approval route and automatic route, but there are a lot of complications under ECB. आपको पहले विभोर जी क्वेश्चन है राजेश गोयल जी का, what is the rate benefit for packing credit in INR? INR के अंदर क्या बेनिफिट रहेगा PC लेने के लिए? रुपी पैकिंग क्रेडिट, सो अगर आप रुपी में क्रेडिट में पैकिंग क्रेडिट की आप बात करेंगे तो हमें इसको नॉर्मली CC या LC से बात करेंगे। अगर हम जब स्लाइड्स में आगे जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि जब एक्सपोर्ट क्रेडिट है वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का पार्ट होता है। सो बैंक टू बैंक अलग अलग बेनिफिट्स देता है प्री शिपमेंट क्रेडिट, बट नॉर्मली रेट इसका 9% के करीब रहता है, बट डिपेंड्स ऑन बैंक टू बैंक। बट आप रुपी में लेते हैं तो नॉर्मली इट गेट्स अराउंड 9%, बट अगेन डिपेंड्स ऑन द रेटिंग एट बैंक टू बैंक, बट इट इज मच मोर चीपर देन। सो जहां पर आपको CC 10% के करीब पड़ेगा तो एक्सपोर्ट क्रेडिट इन रुपी वुड बी क्लोज टू 9% ब्रॉडली। ओके, इंक्लूडिंग फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, मोटा-मोटी कह सकते हैं। विजय जी, होता क्या है जब एक्सपोर्टर फॉरेन एक्सचेंज हेजिंग करता है तो वो उसके लिए बेनिफिशियल होता है, क्योंकि वो फॉरेन एक्सचेंज को बेच रहा होता है। सो टेक्निकली उसे
प्रीमियम रिसीव होता है। सो अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ 9% को, तो मैं अगर फॉरेन एक्सचेंज फॉरवर्ड प्रीमियम आज का अगर 6 महीने का फैसिलिटी लेता हूँ, 6 महीने का फॉरवर्ड प्रीमियम अगर मैं बोलता हूँ 5% है, एनुअलाइज कॉस्टिंग की बात करते हैं हम, तो 9% माइनस 5%, तो मुझे इफेक्टिव रेट पड़ा अगर मैंने तो 4%। ओके, सो इस हिसाब से हमें देखना पड़ेगा कि बेसिकली कि वो फॉरेन एक्सचेंज फॉरवर्ड प्रीमियम्स क्या हैं, प्लस टाइम टू टाइम गवर्नमेंट सबवेंशन स्कीम देती है, जैसे पीछे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में था और कुछ और इंडस्ट्रीज में था जो 2% का सबवेंशन था। सो टेक्निकली 9% की जगह आपको वो 7% पे पड़ जाता है। विजय जी, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, आप कंटिन्यू कीजिए। सो हम ECB पे थे। So ECB, again there is a directive by RBI, what is the minimum average maturity, what is the pricing. So आपको सर्कुलर देखना पड़ेगा whether you can draw for that permissible purpose, average maturity क्या होना चाहिए, but there are a lot of complication as we are trying to understand, क्योंकि ऑटोमेटिक रूट में भी आपको क्वार्टरली रिटर्न भरनी पड़ती हैं, सिक्योरिटी क्रिएशंस का थोड़ा सा डिफाइंड पैरामीटर्स है, रीफाइनेंसिंग का पैरामीटर है, इसलिए लोग अब टर्म लोन रुपी की जगह SCY भी लेने स्टार्ट कर दिया है। So although ECB is थोड़ा सा cheaper source of finance, but because of complications और मैं बोलूँ compliances, people are now going forward for term loan in HCY. But if it's a decent size, for less than, let's assume it's more than $10 million, you can always go for ECB routes, which is more cheaper source of finance than most of these products as we are talking about. As we discussed, जहां तक मोस्टली जो मैं कवर करने की कोशिश करूंगा is more or less is working capital to various MSMEs and corporate customers, क्योंकि अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग क्रेडिट अप्रेजल होते हैं। यहाँ पर हम फोकस करेंगे क्योंकि मोस्ट ऑफ अस प्रोफेशनल्स और हम उनको सर्विस देते हैं टू सर्विस MSME and corporate customers. So as per MSME Act, the manufacturing companies are defined with investments in plant and machinery, where in service sector it is defined in terms of specific investments in equipment. There was a change in bill which says that the MSME की definition as per turnover होनी चाहिए. The reason is very simple, because turnover is much more easy to project and to evaluate rather than investment in plant and machinery. However, this bill is still pending, but still it's under discussion. What are the various advantages available to MSME? There is a lot of advantages. There's a master direction circular by RBI lending to micro and small enterprises, which is 2017 and 18. You can always refer to that circular because वो in detail में बताता रहता है कि what are the different products, advantages available and what are the depending on the size of micro, small and medium enterprises. तो आप हमेशा उसको रेफर कर सकते हैं इस सर्कुलर को। अगेन जब हम बात करते हैं बैंक से, तो हमेशा हमें ये वर्ड यूज होता है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। कुछ बैंक्स PSL होते हैं, अलग अलग बैंक्स ने अलग अलग डिफाइन कर रखा है PSL, अलग अलग सेक्टर और डिवीजन बना रखे हैं इस PSL लेंडिंग को। सो RBI ने डायरेक्टिव दे रखा है बैंक्स को टू कैटर टू दीज 8 सेक्टर्स, and then they have defined it as a priority sector lending for social development, so which is agriculture, MSME, export credit, housing, social infrastructure, renewable energy and others. इसमें RBI has defined different targets to depending on bank to bank जो उनको अचीव करने पड़ते हैं। When I say bank to bank, उन्होंने basic definition foreign banks having less than 20 branches and other banks की define दे रखी है। So total priority sector lending का 40% of your net adjusted credit और credit equivalent आपको invest करना पड़ता है। Since आपको ये 40% अपना invest करना, आपको loans देने पड़ते हैं of your defined definition to the PSL, इसीलिए जब हम बोल रहे थे MSME एक्सपोर्ट क्रेडिट इज मच मोर लुक्रेटिव फ्रॉम अ बैंकर आल्सो एंड फ्रॉम अ बैंक पर्सपेक्टिव। तो जब भी हम बैंक में एप्लीकेशन डालते हैं, वी हैव टू सी वेदर आवर कस्टमर और द फैसिलिटी व्हिच वी आर डिमांडिंग फॉल्स अंडर एक्सपोर्ट अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। इफ इट इज फॉल्स अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, then we have to clearly state in a proposal that this is the PSL lending so that it becomes more lucrative for the banker when it sees it. There's a very wide definition of these 8 sectors क्योंकि वो कुछ चीजें कवर करते हैं, कुछ नहीं करते। For the sake of brevity, you can always refer to this master direction on priority sector lending, target and classification June 2016 का है, which is updated on time to time basis, कि whether the customer to which you are for which you are making a proposal or you are serving, whether its proposal falls under priority sector lending or not.
अगेन हम वर्किंग कैपिटल के असेसमेंट की बात करते हैं. देयर इज इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट एडवांसेस सर्कुलर आरबीआई कहता है 2015 and 16 विद डिफाइंस इट. सो बेसिकली दो मेथड डिफाइन किए जाते हैं. फर्स्ट मेथड इज टू एक्सरसाइज अप टू 5 करोड़ रुपीस एंड सेकंड मेथड इज टू नॉन एक्सरसाइज अप टू 1 करोड़ रुपीस. उसके लिए वो बोलते हैं टर्नओवर मेथड which is nothing but 25% of the projected turnover. तो next year का आपका क्या turnover होने वाला है उसका 25% is called as a assessed bank finance या हम बोले bank finance या permissible bank finance जिस भी भाषा में बोले is considered as a 25% projected turnover. However इसमें से RBI circular बोलता है 20% of the 25% which is 5% as a promoter margin आना पड़ेगा. So technically bank would provide 20% of the projected turnover as a bank finance under turnover method. However, the circular also says that कि अगर आपका कोई और ट्रेडिशनल मेथड लगाना चाहते हैं, आपका पीक नॉन पीक लिमिट्स डिफाइन करना चाहते हैं, तो आप हमेशा वो कर सकते हैं. बट ब्रॉडली 20% ऑफ प्रोजेक्टेड टर्नओवर बैंक ले लेते हैं फॉर एक्सरसाइज लोन्स अप टू 5 करोड़ एंड फॉर नॉन एक्सरसाइज अप टू 1 करोड़ रुपीस. सो द क्वेश्चन वुड बी व्हाट हैपेंस टू द रेस्ट ऑफ द लोन्स. आरबीआई ने अपने सर्कुलर में कभी भी डिफाइन नहीं किया आप कौन सा मेथड अपनाना चाहते हैं. इट इज वेरी लिबरल. उसने बैंक में छोड़ दिया है कि आप कौन सा मेथड अपनाना चाहते हैं, कौन सा मेथड नहीं अपनाना चाहते हैं, आप वो अपना सकते हैं. एक टेंडन कमेटी का मेथड आता था विच बोलता था कि 1.33 करंट रेशियो होना चाहिए, विच इज नॉट बीइंग फॉलोड. हाउएवर वो उसका अगर आप मेथड देखें एनपीबीएफ का तो ब्रॉडली दैट इज बीइंग फॉलोड. आज के डेट में सिंस एनपीबीएफ डेफिनेशन टेंडन कमेटी इज नॉट देयर, सो इट इज कॉल्ड एसेस बैंक फाइनेंस बाय सम बैंक, परमिसिबल बैंक फाइनेंस बाय अनदर बैंक, और it is called as MPBF, which is maximum permissible bank finance, which is nothing but 75% of the current assets minus current liabilities. वो हम पढ़ेंगे बाद में, देखेंगे स्लाइड्स में कि वो कैसे निकालते हैं, किस मेथड से निकालते हैं. But broadly banks are liberal. RBI is kept on the banks to ensure what method they follow. They can also follow cash budgeting method, but most or less जो banks follow करते हैं वो assessed bank finance या permissible bank finance करते हैं, which is nothing but second method of NPBF, which is 25-75% of the current assets minus current liabilities, जितना वो फंडिंग करते हैं. अब हम बात करते हैं क्रेडिट मॉनिटरिंग अरेंजमेंट की. बेसिकली देयर आर टू फैक्टर्स व्हिच वी नीड टू सी इन अ अप्रेजल, व्हिच इज फर्स्ट is financial part and second is non financial part. Both are important in that. So ऐसे नहीं है कि खाली financial के basis पे assessment होता है. Non financial is much more, is also equally relevant. आज की situation में जहाँ पे lockdown हो चुका है, so and सौरभ जी ने जैसे बोला कि it's more 5 C's. So आज की situation में non financial part also are as important as financial part. We'll discuss in details कि non financial parts क्या क्या हैं, कैसे कैसे उसे monitor करते हैं, हमें उनके बारे में क्या क्या पता होना चाहिए. So financial part के बारे में पढ़ते हैं. Basically समझते हैं कि financial part is called as credit monitoring arrangement, which is CMA. It is nothing but it's a modern day Excel template in which we have to punch in 2 sheets and then there is an output of 2 another sheets, which is form 3 and 4 gets an output. Form 2 and 3 we have to fill in and then we get an output of form 3 and 4, जिसके बेसिस पे हम assess करते हैं कि बैंक को की कस्टमर को कितना रिक्वायरमेंट है वर्किंग कैपिटल का, किस किस प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट है, उसके करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज कैसे मूव कर रहे हैं, एंड ऑल दोस फैक्टर्स. सो बेसिकली इट कंसिस्ट क्रेडिट मॉनिटरिंग अरेंजमेंट CMA. अगेन मोर और लेस बैंक्स सेम फॉर्मेट यूज करते हैं. If you want a format, you can always send it a link to me and then ping me or then mail me across it and then I can send you the CMA format as well. थोड़ा सा मैंने इसे modify कर रखा है to give me some more ratios which are more relevant for credit appraisal at a later stage. So basically form 2 is the operating statement, which is nothing but profit and loss account. Form 3 is statement of assets and liabilities, which is nothing but balance sheet. Form 4 हमें current assets and current liabilities की movement के बारे में बताता है and form 5 हमें एसेस बैंक फाइनेंस जो हमने पहले देखा था या मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस या परमिसिबल बैंक फाइनेंस के बारे में बताता है कि हम कितना लेंडिंग कर सकते हैं टू अ कॉर्पोरेट. सो सिंस मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स आर चार्टर्ड अकाउंटेंट और प्रोफेशनल्स, सो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, बिकॉज़ वी डू लॉट ऑफ ऑडिट्स, वी ओनली डू ऑडिट्स एंड वी प्रिपेयर दीस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. सो व्हाट आर द की पैरामीटर्स, आई विल ट्राई टू ओनली हाईलाइट दोस पार्ट्स एंड देन टेक इट फॉरवर्ड, बिकॉज नॉन क्रिटिकल नॉन फाइनेंशियल पार्ट भी हमें समझने पड़ेंगे. पे बहुत सारी क्वेरीज आती हैं क्रेडिट एनालिस्ट की या क्रेडिट ऑफिसर्स की. सो प्रॉफिट एंड लॉस नॉर्मली इन अ CMA फॉर्मेट वी हैव टू पंच इन 3 years historical data
प्लस 2 years प्रोजेक्शंस ऑफ प्रोविजन डेटा। आज की डेट में जो हम अप्रैल में बैठे हुए हैं, तो फॉर एग्जांपल कुछ बैंक आपको बोलेंगे 3 years हिस्टोरिकल डेटा आप दीजिए, प्लस आप 1 year विच इज लास्ट ईयर का प्रोविजन दीजिए, प्लस अगले साल विच इज 2021 का प्रोजेक्शन फिगर दीजिए, 21-22 की भी प्रोजेक्शन फिगर दीजिए। कुछ बैंक आपको खाली बोलेंगे 2021-22 की ही आप नंबर्स दीजिए और 2021 का ही नंबर्स दे दीजिए। सो डिपेंडिंग ऑन बैंक टू बैंक दे वुड आस्क फॉर आइदर 5 years डेटा और 6 years डेटा। हिस्टोरिकल पंचिंग तो सबसे आसान है हमारे लिए, बट द ओनली थिंग व्हिच वी नीड टू एनालाइज इज दैट वी आर हियर, वी हैव टू स्टेप आवरसेल्फ इन शूज ऑफ इक्विटी एनालिस्ट और analyst or a financial analyst while punching in data rather than being from a compliance angle. हमें हर आइटम को एक एनालिस्ट की नजरिए से देखना पड़ेगा while punching in और पूछना पड़ेगा what is the relevance of this to the business and how does it moves in the future financial year with logics and assumptions. For example, gross sale, net sale हमें सबको पता है. Other income, it's a very important part. I'll come to it later on. Depreciation, EBITDA. EBITDA is like an operating प्रॉफिट। ये वर्ड हम बैंकर से बहुत बारी सुनेंगे कि आपका बेटा गिर रहा है, बढ़ रहा है, स्टेबल है। इट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, टैक्स। दे एक्ट लाइक अनलिवरेज, अनलिवर बैलेंस शीट में क्या रिटर्न्स आ रही हैं, दे वांट टू असेस इट। पीबीटी, पीएटी, वी ऑल अंडरस्टैंड। प्रॉफिट बिफोर नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड एक्सपेंसेस। अगेन एज आई से, अदर इनकम कभी-कभार बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव अ कस्टमर जिसकी 100 करोड़ की टर्नओवर है एंड इट शोज अ प्रॉफिट ऑफ 1 crore, साइमल्टेनियसली it shows a profit, it shows other income of 1.2 crores. So technically in that part it becomes difficult for banker to assess it, because आप ये बोल रहे हैं कि मेरी other income 1.2 crores है and 1 crore का मेरा profit है। So basically मेरा profit from operation कुछ नहीं हो रहा, मैं other income से ही कमा रहा हूँ। So all these things, अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है और किस ईयर में हुआ है और क्या नेचर था, तो इसलिए हमें अदर इनकम क्या है, किस नेचर की है, एंड उसको जब हम प्रोजेक्शंस में डालेंगे तो क्या से डालेंगे, कैसे नहीं डालेंगे, वेदर वी अज्यूम इट टू बी कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल, इफ इट इज रेंटल इनकम वी कैन अज्यूम इट टू बी कांस्टेंट, इफ इट इज कमीशन वी कांट अज्यूम इट टू कांस्टेंट और कैन अज्यूम इट टू कांस्टेंट, डिपेंड ऑन सिचुएशन टू सिचुएशन। सो अदर इनकम, EBITDA is a critical part which we need to see and assess. There are certain key points which I think which we have to take care while doing projections. आज की डेट में, for example, where the sales have fallen down, अब अगले साल का हम प्रोजेक्शन कैसे करें? There could be one question. So, और EPC कंपनीज जो और ऑटो कंपनीज जो जिनके पास ऑर्डर्स होते हैं, वो कैसे प्रोजेक्ट करें फ्यूचर ईयर्स के प्रोजेक्शंस? तो उसका सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप देख सकते हैं कि कस्टमर के पास ऑर्डर इन हैंड्स क्या है, वो किस तरह के ऑर्डर हैं, फर्म ऑर्डर्स हैं या फिर वो नॉन फर्म ऑर्डर्स हैं, और उसके बेसिस पे असेस कर सकते हैं कि उसकी अगले साल टर्नओवर क्या होने वाली है। अगेन प्रोडक्शन वॉल्यूम, वो कितना प्रोड्यूस करेगा, अगर वो स्टिल 90% कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहा है और हम बोल रहे हैं कि वो अगले साल भी ग्रो होगा 30% 40%, तो हम ये बोलना चाहते हैं इनडायरेक्टली कि वो अपने फिक्स एसेट्स भी बढ़ाएगा। सो हमें उन फिक्स एसेट्स को बढ़ाने को भी इंक्लूड करना पड़ेगा अपने सीएमए में, जब हम बोलते हैं कि हाँ उसके फिक्स एसेट्स भी बढ़ेंगे। सेल्स प्राइस क्या होने वाला है, प्रोडक्ट मिक्स क्या होने वाला है, सेल्स रिटर्न पॉलिसीज क्या होने वाली हैं, तो ये सब देखना पड़ेगा आपको नेक्स्ट ईयर प्रोजेक्शंस देखने के लिए। लेबर मैनेजमेंट सैलरीज जो हम आजकल सुन रहे हैं कि क्या इम्पैक्ट आएगा कोविड पे इन सैलरीज का, बिकॉज लास्ट ईयर तो ग्रो हुई होंगी, इस साल वो ग्रो होंगी या नहीं होंगी। बैड डेट्स, अपकमिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि क्या होता है कि हम जैसे हमने बोला, हमने प्रोडक्शन वॉल्यूम का हमने बोल दिया कि वो बढ़ेगा, हमने फिक्स एसेट रिक्वायरमेंट नहीं बढ़ाया। सो बार बार टू एंड फ्रो होता रहेगा हमारा प्रपोजल बैंकर के साथ, तो इसलिए हमें देखना पड़ेगा अगर हम टर्नओवर बढ़ा रहे हैं और हम प्रोडक्शन वॉल्यूम्स भी बढ़ा रहे हैं, तो हमें फिक्स एसेट्स भी बढ़ाने पड़ेंगे। उस फिक्स एसेट्स का फाइनेंसिंग भी देखना पड़ेगा, वेदर इट इज थ्रू इक्विटी और इट इज थ्रू टर्म लोन। अगर वो टर्म लोन में है तो इक्वली डेट भी बढ़ेगा, उसकी रिपेमेंट भी बढ़ेगी, उसका इंटरेस्ट भी कंपोनेंट आएगा। तो वी हैव टू मेक श्योर कि अगर ये सब इकट्ठे हो एक हमारे सीएमए मॉडल में, देन ओनली वो बार बार टू एंड फ्रो फ्रॉम बैंक नहीं होगा। अगेन हमारी डेप्रिसिएशन पॉलिसीज क्या हैं, वो भी हमें डिफाइन करनी पड़ेंगी एंड हम वो निकालनी पड़ेंगी, सो दैट अगर अपकमिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर उसको प्रॉपर्ली टेक केयर कर दिया जाए। सेल्स टू ग्रुप कंपनीज एंड इंपैक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी भी देखना पड़ता है हमें, क्योंकि कई बार ग्रुप कंपनीज को हम बहुत ज्यादा सेल कर रहे होते हैं, तो वेदर वी हैव टू एक्सक्लूड इट एंड सी दैट वेदर द सेल्स हैव बीन इंक्रीजिंग और नॉट। In terms of balance sheet, broadly, what are the key things which we need to see is
capital reserve and surplus, debenture, private equity investment in business. This is a very key concept in present scenario. बहुत सारी प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स क्या करती हैं कि आपको फंडिंग तो कर देती हैं इक्विटी के फॉर्म में, बट देयर आर सर्टेन क्लॉजेस व्हिच सेज दैट अगर आपने इतना टर्नओवर अचीव नहीं किया, इतनी प्रॉफिटेबिलिटी अचीव नहीं करी, तो आप ये टर्म लोन वुड बी कन्वर्टेड इनटू दिस इक्विटी वुड बी कन्वर्टेड इनटू अ टर्म लोन. सो आपको बहुत क्लियरली डिफाइन करना पड़ेगा अगर ऐसा हुआ तो रीपेमेंट कहां से होगी, या फिर ये इक्विटी नहीं है, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में आ रखे हैं, ऑप्शनल कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में आ रखी है. तो हमें खाली ये बोलना कि प्राइवेट इक्विटी मनी है तो इक्विटी है, इट वुड नॉट बी सफिशिएंट फ्रॉम अ प्रपोजल पर्सपेक्टिव. हमें देखना पड़ेगा कि वो किस फॉर्म में इक्विटी आई हुई है और उसका फ्यूचर नेचर रीपेमेंट क्या से होने वाला है. अनसिक्योर्ड लोन, क्वाजी इक्विटी, अगेन जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो हम या इक्विटी बोलते हैं, लोन बोलते हैं. देयर इज अ मिक्सचर कॉन्सेप्ट व्हिच इज कॉल्ड अनसिक्योर्ड लोन और क्वाजी इक्विटी, व्हिच सेज दैट कि अगर मैंने अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से पैसा दे रखा है, मैं उसको बोल सकता हूँ ये अनसिक्योर्ड, ये सब इट्स अ क्वाजी, इट्स अ मिक्सचर ऑफ अ इक्विटी एंड अ डेट, और बैंकर उसको TNW में व्हिच इज टेंजिबल नेटवर्थ में इंक्लूड कर लेता है. हाउएवर देयर इज अ एडवाइस फॉर एवरीवन इज दैट कि समटाइम्स बैंकर बोलता है कि आपको एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा कि आप इतना पैसा मेंटेन करेंगे अपने बिजनेस में. समटाइम्स वो बोलता है आपको साइन करना पड़ेगा एग्रीमेंट कि आप सबऑर्डिनेशन क्लॉजेस साइन करेंगे, और समटाइम्स वो बोलता है जिसने बंदे ने पैसा डाल रखा है वो उसको एग्रीमेंट में डालना, वो आपको एग्रीमेंट में डालना पड़ेगा कि उसको साइन करना पड़ेगा कि बेसिकली वो whether they would invest or not. So अगर वैसा क्लॉजेस है तो आपको पहले से ही अपने क्लाइंट से बात करनी पड़ेगी कि उसके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव वो एग्रीमेंट साइन करेंगे विद द बैंक और नॉट, बिकॉज अगर वो साइन नहीं करेंगे तो आपका प्रपोजल अगर सैंक्शन भी हो जाएगा तो डिसबर्समेंट स्टेज में रुक जाएगा. सो बिफोर वी क्लासिफाई अ फ्रेंड और रिलेटिव लोन एज अ इक्विटी और एज अ अनसिक्योर्ड लोन और क्वाजी इक्विटी, हमें पहले से ही तैयारी करनी पड़ेगी और क्लाइंट से बात करनी पड़ेगी अपने. टेंजिबल नेटवर्थ इज नथिंग बट शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस क्वाजी इक्विटी का मिक्सचर होता है. Adjusted tangible net worth is nothing but share capital, reserve and surplus, which is tangible net worth minus investment in loans and group companies. So basically, अगर suppose let's assume एक ऑटो कंपनी है और एक ऑटो कंपनी है जो ऑटो कंपनीज के अलावा किसी और में इन्वेस्टमेंट करती है, सपोज रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर देती है, which is not its core activity. So जो भी इन्वेस्टमेंट उसकी सब्सिडरीज में ग्रुप कंपनीज में हो रखी है, या तो हमें बहुत लेस करना पड़ेगा देखने के लिए कि बेसिकली उस बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट हो रखा है, which is called adjustable tangible net worth for that company. So adjustable tangible net worth कुछ नहीं होता, it's the investment in that company जो हमें देखना पड़ेगा कि TNW minus investment in loans and advances minus for future investments either in form of equity or loans and advances. So TNW भी देखनी पड़ेगी, क्योंकि नहीं ऐसा ना हो कि हमारे से हमने जो पैसा इन्वेस्ट कर रखा है उससे ज्यादा हमने निकाल दिया हो इन फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट. तो ये सब हमें एनालिसिस देखना पड़ेगा एंड इसको करना पड़ेगा. नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट विच इज टर्म लोन, लोन्स एंड एडवांसेस, हमें सबको पता होगा. करंट मैच्योरिटी ऑफ टर्म लोन्स इज नथिंग बट व्हाट इज मैच्योरिंग टर्म लोन्स. खाली एक चीज यहाँ पे देखनी पड़ेगी व्हाइल फॉर्मुलेटिंग प्रोजेक्शंस कि अगले साल जो हम बोल रहे हैं टर्म लोन लेगा उसकी भी रीपेमेंट्स हमें डालनी पड़ेगी और वो नॉर्मली प्लॉट करना पड़ेगा. इसके लिए बेटर है कि आप एक अलग से एक्सेल शीट बना लीजिए या उसमें एक अलग से टैब बना लीजिए अपने सीएमए मॉडल में कि करंट मैच्योरिटी ऑफ टर्म लोन्स कैसे हो रही है. अगर आपके 3-4 टर्म लोन्स हैं उन पे इंटरेस्ट कैसे आएगा, क्योंकि उसका इंटरेस्ट भी कॉमन होता है. अगेन फिक्स एसेट जैसे हमने बात करी कि अगर आपका अपकमिंग इन्वेस्टमेंट्स हैं तो वो साइमल्टेनियसली फिक्स एसेट बढ़ेगा, टर्म लोन्स बनेगा, CPLTD बढ़ेगा, इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ेगा, तो ये सब इकट्ठे बढ़ेंगे. तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या बढ़ रहा है क्या नहीं बढ़ रहा. अगेन इफ देयर इज अ इंटेंजिबल एसेट, गुडविल या ब्रांड इक्विटी आप किसी को एक्वायर करना चाहते हैं अपने मैनेजमेंट डिस्कशंस में, तो आपको वो भी डालना पड़ेगा. हमने इन्वेस्टमेंट ग्रुप कंपनीज जैसे बोला कि वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस बिकॉज इट्स अगेन इज क्लासिफाइड एज नॉन करंट एसेट. हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे कि जो नॉन करंट एसेट्स होते हैं आइदर इट शुड बी फंडेड फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म सोर्सेज व्हिच इज इक्विटी और अ टर्म लोन. सो नॉर्मली बैंकर बोलते हैं कि हम इक्विटी से फंडिंग होना चाहिए. Inventory, raw material, finished goods, and WIP. So again, this is the only common link between profit and loss account. This is one of the common link between profit and loss account and the balance sheet. क्योंकि दोनों का common में जो हम raw material, WIP and finished goods दिखाएंगे अपनी बैलेंस शीट में वही रिफ्लेक्ट होगा P&L में, या P&L में जो दिखाएंगे वही रिफ्लेक्ट होगा बैलेंस शीट में. तो होल्डिंग लेवल्स जो हम आगे देखेंगे, इट्स वेरी क्रिटिकल.
जो हमें वो पहले डिफाइन करने पड़ेंगे अपनी प्रॉफिटेबिलिटीज डिफाइन करने से, क्योंकि वही हमारा आगे डिफाइन करेंगे हमारा प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगा क्या नहीं होगा। सो रिसीवेबल्स कितने हैं हमारे, डेटर्स लेस देन 6 मंथ्स, मोर देन 6 मंथ्स, एक्सपोर्टर्स कितने हैं, लोन्स एंड एडवांसेस कितने हैं, मार्जिन मनी फॉर नॉन फंड बेस्ड लिमिट्स। अगेन अगर हम बोल रहे हैं कि हमने नॉन फंड बेस्ड लिमिट्स ले ली हैं, नॉर्मली नॉन फंड, सो अगर हमारे मार्जिन मनी फॉर नॉन फंड बेस्ड लिमिट्स हमें देखना पड़ेगा कि अगर नॉन फंड बेस्ड लिमिट्स हम ले रहे हैं आगे, तो नॉर्मली बैंकर बोलते हैं कि इस नॉन फंड बेस्ड लिमिट्स का 15 to 20% हमें पैसा रखना पड़ेगा एज अ सिक्योरिटी विद देम। सो अगर हम हमारी फैसिलिटीज मोस्टली नॉन फंड में इंक्रीज हो रही हैं, सो हमें टेक्निकली अपना मार्जिन मनी भी बढ़ाना पड़ेगा तो नॉन फंड बेस्ड लिमिट्स में, व्हिच इज द फॉर्म ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट्स। व्हाट इज द क्रेडिट टर्म्स विद कस्टमर एंड सप्लायर्स विल अगेन डिफाइन द होल्डिंग पीरियड्स। सो हम कैसे डिफाइन करें कि हमारे इन्वेंटरी रिसीवेबल्स या सन्ड्री क्रेडिटर्स या सन्ड्री डेटर्स का क्या होल्डिंग पीरियड होगा, बैंक कैसे असेस करता है, या जो हम बोलेंगे वो बैंक मान लेगा, ऐसा नहीं होता। सो बेसिकली 6-7 बैंक ब्रॉडली चीजें देखता है वाइल आपका जो आपने होल्डिंग लेवल्स बताए हैं उसको एनालाइज करने के लिए। फर्स्ट कि आपने लास्ट 3 इयर्स का ट्रेंड क्या है, आपकी बैलेंस शीट हिस्टोरिकली क्या बोल रही है, ट्रेंड लेवल्स पे है वो देखता है। आपका पीयर कंपैरिजन, इंडस्ट्री रिपोर्ट, इंडस्ट्री की कोई रिपोर्ट आपकी पब्लिश होती है कि हाँ इतना होल्डिंग लेवल स्टॉक का रहता है। फॉर एग्जांपल कार्स में कितना आजकल होल्डिंग काफी ज्यादा रह रही है, फिनिश प्रोडक्ट में, ऑटोमोबाइल्स की बात कर रहा हूँ। लिस्टेड कंपनी डेटा, अगर कोई और आपकी कंपनी आपका कॉम्पिटिटर है वो लिस्टेड है, उसका क्या होल्डिंग लेवल्स रहता है। मैनेजमेंट डिस्कशन से आपको पता चल जाएगा कि सपोज कि स्लो मूविंग स्टॉक कितना रहता है, या इट इज imperative for the business to have this much of raw material क्योंकि वो इंपोर्ट करते हैं, बल्क में आना चाहिए। हमारी प्रोडक्शन पॉलिसीज क्या है, प्रोसेसिंग क्या है, नंबर ऑफ शिफ्ट्स क्या है, अगेन हम इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये बेसिकली 5-6 चीजें हैं जो डिफाइन करती हैं वेदर जो हम होल्डिंग लेवल्स बोलना चाहते हैं फ्यूचर प्रोजेक्शंस के लिए इज सस्टेनेबल और नॉट, बिकॉज बेसिस दिस होल्डिंग पीरियड ही हमारा वर्किंग कैपिटल असेसमेंट अल्टीमेटली होने वाला है। सो दिस इज वेरी की कॉन्सेप्ट कि जब हम होल्डिंग लेवल अपना डिफाइन करते हैं जो हमें अपने आप फॉर्म 4 में अपने आप आता है, सो वो हमें देखना पड़ेगा कि वेदर इट इज कंसिस्टेंट विद ऑल दीज फैक्टर्स और नॉट। So broadly, from a very different perspective, from a banker perspective, ये स्लाइड बताएगी कि हमें कैसे कैसे फंडिंग होनी चाहिए। जैसे हम बोलते हैं फिक्स एसेट्स, so fixed assets should be funded from a term loan, and part of the fixed assets should be contributed towards contributed by TNW. Again, जो current assets है, it has to be funded through current liabilities, which is bank funding and creditors and other form of current liabilities, plus tangible net worth के through margin contribution होना चाहिए। Non-current assets and intangible has to be funded through TNW. So broadly, अगर ऊपर मिक्स मैच होता है कि अगर हमारे पास टर्म लोन नहीं है और हमने सारा कुछ फंड कर दिया TNW से, so क्या होगा कि करंट एसेट वुड बी फंडेड ओनली बाय करंट लायबिलिटीज, हमारा नेट वर्किंग कैपिटल जो हम बोलते हैं मार्जिन कंट्रीब्यूशन वो नहीं रहेगा। सिंस मार्जिन कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा तो हमारा असेसमेंट ही नहीं बनेगा फ्यूचर में। सो हमें नेक्स्ट ईयर में देखना पड़ेगा कि बेसिकली फिक्स्ड एसेट्स इज फंडेड फ्रॉम लॉन्ग टर्म फंड्स, current assets is funded from short term funds, which is current liabilities and bank borrowings, and tangible net worth is contributed partly towards fixed assets, current assets, and wholly towards intangible assets and non-current assets, especially investment in group companies. Broadly, जैसे मैंने बोला कि फॉर्म हमने 2 and 3 of CMA डिस्कस कर लिया। फॉर्म 4 जो बोलता है वो क्रेडिट रेशियोज के बारे में आता है। इनफैक्ट आप अपने रेशियोज को खुद भी प्लॉट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सारे रेशियोज कवर नहीं करूंगा बिकॉज ऑल ऑफ अस प्रोफेशनल्स, सो मैं ब्रॉडली आई ट्राई टू कवर व्हाट आर द की रेशियोज फ्रॉम अ बैंकर पर्सपेक्टिव। बैंकर की आई में क्या रेशियोज इंपॉर्टेंट होते हैं, क्या मूवमेंट्स इंपॉर्टेंट होती है। सो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि बेसिकली दीज आर नॉट एब्सोल्यूट रेशियोज, इनका ट्रेंड भी उतना ही इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू दैट रेशियो। तो अगर आपका किसी भी रेशियो में आप प्रोजेक्शंस में या हिस्टोरिकल में आपका ट्रेंड चेंज हुआ है तो आपको अपने कस्टमर से पूछना पड़ेगा या आपको खुद ही एनालाइज करना पड़ेगा व्हाट इज द की रीजन फॉर मूवमेंट ऑफ दैट रेशियो, व्हाट इज द की रीजन फॉर मूवमेंट ऑफ दैट ट्रेंड, और उसको एक हमें नोट के फॉर्म में डालना पड़ेगा अपने प्रपोजल में कि वेदर वो फ्यूचर में होगा या नहीं होगा, डिपेंडिंग ऑन पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी ऑन द इंपैक्ट ऑफ दैट रेशियो। सो प्रॉफिटेबिलिटी की विषय में बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट PBT, which is nothing but profit PAT divided by net sales, PBT। EBITDA by net sales is again a key ratio जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। जो हम देखते हैं कि PAT अगेन जो हम देखते हैं we have to see whether that PAT includes other income or not, और उसको हटा के क्या रेशियोज आते हैं।
क्योंकि ऐसा ना हो कि सारा प्रॉफिटेबिलिटी इज कंट्रीब्यूटेड टू अदर इनकम्स, उस सिचुएशन में proposal becomes and our explanation becomes थोड़ा सा tough, but then we have to understand it before we had any discussion with the banker. Again, there's a concept of cash profit, which is profit PAT plus non-cash items, which is mainly depreciation. अगर आप छोटे proposals की बात करें, so sometimes management salaries, which is nothing but director salaries होता है, आपको वो भी ध्यान से देखना पड़ेगा what is there, and then you can always project that would also be drawn after your loan repayments. So although it is not a part of the cash profit, but वो आप explanation banker को दे सकते हैं कि हाँ मेरा इतना profitability है business में, because the salary which my promoters are drawing belongs to me itself. Current ratio, liquidity ratio consists of current ratio जो हम देखते हैं. Net working capital is deployment of capital towards current assets, which is nothing but current assets minus current liabilities, और उनका trend क्या है वो broadly देखा जाता है. अगर वो बहुत मेजरली फॉलो हो रहा है तो इट मींस कि आपने डाइवर्जन कर रखा है. गियरिंग रेशियोज, ये गियरिंग और लिवरेज रेशियोज अलग बैंक अलग अलग डेफिनेशन करते हैं. सम बैंक्स बोलते हैं कि हम TOL बाय TNW को डिफाइन करेंगे, कुछ बोलते हैं हम TD बाय TNW को डिफाइन करेंगे, कुछ बोलते हैं हम ऑल टर्म लोन्स डिवाइड बाय टोटल नेटवर्थ को डिफाइन करेंगे. सो डिपेंडिंग ऑन बैंक टू बैंक वो ये रेशियो डिफाइन करते हैं because it's only a formula. So total outside liabilities divided by total net worth डिफाइन करता है कि हमने हमारा पैसा कितना है और दूसरों बंदों का पैसा कितना लगा हुआ है इस बिजनेस में. So again these ratios are also computed for AT and W, जो कि हमें हेल्प करता है डिफाइन करने की कि what is the money invested in the business and how this ratio is moving towards the money invested in the business, rather than saying total investments in the business. Debt service coverage ratio, this is one of the key ratios which banker sees for long term funds, but short term के लिए वो देखना start कर दिया है उन्होंने और देखते भी हैं, which is nothing but cash profit, which is profit plus depreciation plus interest divided by EMI, which is term loan installment plus interest on that installment. Again different banks का different concept होता है. कई लोग बैंकर्स खाली इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन लेते हैं ऊपर इंटरेस्ट में, कई पूरे फाइनेंस कॉस्ट ले लेते हैं which is include interest on term loans plus interest on working capitals. So but normal situations में every interest is being added for the sake of easiness कि हाँ कि whether higher the ratio better it is, कि कितना हमारा DSCR है. What is the standard DSCR? There is no defined formula, but normally as per bankers 1.25 is a minimum DSCR coverage. So basically ये हर साल देखा जाता है. अगर आप टर्म लोन ले रहे हैं, आपका 7 साल का टर्म लोन है तो आपको 7 साल की प्रोजेक्शन बनानी पड़ेगी. हर साल क्या क्या DSCR है, उसकी मूवमेंट है वो देखा जाता है फर्स्ट, और उसका एक एवरेज DSCR भी देखा जाता है, which should help us to analyze कि किसी साल भी शॉर्टफॉल नहीं होना चाहिए जो हमने रीपेमेंट करना है बैंकर्स को. Again this is as compared to analyzing कि हमारा होल्डिंग लेवल्स क्या होना चाहिए, होल्डिंग लेवल्स कैसे कंप्यूट होते हैं और ऑपरेटिंग साइकिल कैसे कंप्यूट होती है. we'll try to identify जो रॉ मटेरियल कंजम्पशन होता है, it is defined as per annual consumption, stock in progress, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सेल से डिफाइन होता है, फिनिश गुड्स कॉस्ट ऑफ सेल से डिफाइन होता है. अगेन रिसीवेबल डेज, क्रेडिटर डेज डिफाइन होते हैं ग्रॉस सेल्स से, एक्सपोर्ट्स एंड ग्रॉस परचेजेस से. मोस्ट ऑफ द बैंक does averages of last 2 years to arrive at this formula, because वो बोलते हैं एक साल का analysis is not correct, so they would average it out for 2 years to define it. The operating cycle is nothing but raw material consumption plus stock plus WIP plus finished goods plus receivable minus creditor. So basically operating cycle हमें बताता है for 3 years की trend क्या है, कि कैसे कैसे मेरा कितने number of days में operating cycle move कर रही है, और हमें फ्यूचर में डिफाइन करना पड़ता है कि वे कैसे कैसे मूव करेगी. नॉर्मली अगर वो कंसिस्टेंट होता है, इट इज इजियर फॉर बैंकर्स टू डाइजेस्ट. हाउएवर जैसे आज हम करंट सिचुएशन में हैं, वो कंसिस्टेंट नहीं रहेगा, वो थोड़ा सा हिलेगा. सो व्हेन इट मूव्स वी हैव टू गिव लॉजिक्स टू इट कि वो मूव बिकॉज ऑफ स्टॉक बढ़ रहा है या डेटर बढ़ रहा है या क्रेडिटर्स हमारे कम हो रहे हैं वो बढ़ रहा है. सो डिपेंडिंग ऑन ईच वी हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द मैनेजमेंट एंड गिव अ एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन टुवर्ड्स दैट पार्ट. विभोर जी थोड़ा सा यहाँ पर आप बता पाए कि जो रेशोज हैं, जो की रेशोज हैं, वो कितना एक्सपेक्टेशन बैंकर का रहता है, कि व्हाट इज दी बेसिकली बेंचमार्किंग ऑफ दीस रेशोज, जो भी इंपॉर्टेंट रेशोज हैं पीछे वाली स्लाइड में.
पीछे 2-3 स्लाइड जो हमारे रेशो के गए तो हाँ जी। सो जैसे सो बेसिकली सौरभ जी, जो रेशियोज का बेंचमार्किंग आरबीआई ने कोई डिफाइन नहीं कर रखा, बट हैविंग सेड दैट, फॉर एग्जांपल आप जो सबसे की रेशियो देखे जाते हैं, जैसे एबिटा देखा जाता है तो वो ट्रेंड देखा जाता है। अब ट्रेडर में एबिटा लेवल वुड बी क्लोज टू 4 to 5% ही एबिटा आएगा, क्योंकि उसका इंटरेस्ट कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाता है, एंड प्रॉफिटेबिलिटी वुड बी क्लोज टू 1%। बट आप अगर उसको कंपेयर करेंगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में या रिटेल सेक्टर में, जो एक कस्टमर ब्रांडेड गुड्स बेच रहा है, उसका बेटा बहुत हाई होगा, क्योंकि उसका वर्किंग कैपिटल थोड़ा ज्यादा होगा, इसीलिए उसका इंटरेस्ट ज्यादा होगा, उसका बेटा कम से कम 12-15% आता होगा बेटा। सो की रेशियो डिफाइन करना कि वो क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, बेंचमार्किंग बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आपका कस्टमर किस सेक्टर में है, क्या सर्विस करता है, क्या प्रोडक्शन करता है, तो इसलिए बहुत डिफिकल्ट है। बट एटलीस्ट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज पॉजिटिव होने चाहिए, बेटा 7-8% होना चाहिए, टीओएल बाय टीएनडब्ल्यू 4-5 होना चाहिए, डीएससीआर मोर देन 1.25 होना चाहिए। सो it depends on individual balance sheet and individual customer to customer and individual sector in which they operate. So ऐसा कोई डिफाइन करना कि बेसिक इतना ही होना चाहिए नहीं है। फॉर एग्जांपल एक हम रेशियो पर करते हैं टीडी बाय टोटल डेट बाय एबिटा, वो नॉर्मली 6-7 का होना चाहिए। सो बेसिकली टोटल डेट एबिटा का 5 से 6%, 5 से 6 टाइम्स होना चाहिए। सो बट वो कई बार ज्यादा भी होता है, क्योंकि वो एक्सपोर्टर है तो उसकी सेक्टर इलोंगेशन ज्यादा होगी, तो हम 7 का टाइम्स भी 7 टाइम्स भी इज एन एक्सेप्टेबल नॉर्म्स। सो डिपेंड करता है कि वो क्या आपका कस्टमर करता है। सो अगेन एज आई टोल्ड यू कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि वो रेशियोज इतने अगर हैं तो हाई क्यों हैं। अगेन वो रेशियोज ऐसे हैं तो हमें सबसे आसान तरीका है कि हम अपने कॉम्पिटिटर, अगर कोई लिस्टेड है तो देख लें उनका क्या रेशियोज है 1-2 कंपनीज का, एंड उससे कंपेयर कर लें, जो हमें थोड़ा सा एडवांटेज देंगे जब हम बैंकर से बात करेंगे कि अगर इसके रेशियोज इंडस्ट्री वाइज कैसे ऑपरेट कर रहे हैं। प्लस देयर आर सर्टेन फ्री रिपोर्ट्स केयर, जो हम आगे भी देखेंगे, एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो हैं केयर, क्रिसिल एंड फिच, ये 3-4 जो बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, ये बहुत सारे डेटा फ्री में पब्लिश करती रहती हैं ऑन सेक्टर्स, एंड वो अगर आप डेटा पढ़ पाए तो आपको थोड़ा ऑन वेरियस इंडस्ट्री वो डेटा पब्लिश करते हैं, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी लग जाएगा कि वो कैसे रेशियोज मूव कर रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी या नॉट। स्पेशली इस पीरियड में जहां पर हम बोल रहे हैं 1 महीने की फिक्स्ड कॉस्ट तो इनकर हो गई, या 10 दिन की फिक्स्ड कॉस्ट विच इज मार्च हमारे पास इनकर होगी, बट जो पुश सेल्स है वो हम नहीं कर पाए, तो रेशियोज एज कंपेयर टू लास्ट ईयर तो थोड़े डाउन ट्रेंड पे आने वाले हैं कि नहीं, इसलिए हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट है कि वो समझे वो डाउन ट्रेंड का रीजन क्या है। नेचुरली तो वो डाउन ट्रेंड का रीजन क्या है हमें वो देखना पड़ेगा कि हाँ सपोज हम जो हमारे इंडस्ट्री में लास्ट मंथ में पुश सेल्स होती थी लास्ट 20 दिनों में वो नहीं हो पाई, तो सेल्स तो हमारे फिक्स्ड कॉस्ट उतने रहे बट वेरिएबल कंपोनेंट इज नॉट एबल टू हिट इट, सो फाइनेंशियल लिवरेज हम ऑब्टेन नहीं कर पाए, बट हमारी फिक्स्ड कॉस्ट उतनी थी, तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, हमारा प्रॉफिटेबिलिटी कितना है, सेल हमारे लास्ट ईयर 2-3 सालों में कैसे कैसे मूवमेंट था मार्च के मंथ में। सो वो सॉफ्ट फैक्टर्स वुड बिकम मोर इम्पोर्टेंट आज की डेट में, रादर देन सेइंग कि वो हमारा रेशियो नेगेटिव है। वो रेशियो तो नेगेटिव होने ही होने हैं बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन, बट आगे कैसे मूव करेंगे और क्यों मूव करेंगे इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर टुडेज बैंक पर्सपेक्टिव। I hope I was able to answer you, Saurabh ji. So definitely, please. So हमने पहले पढ़ा था कि अगर if my to SSI if my limit is more than 5 crore rupees or to non-SSI it is more than 1 crore rupees, तो how do we assess कि वर्किंग कैपिटल कैसे असेसमेंट होती है। तो परमिसिबल माइंड फाइनेंस मेथड या एनपीपीएफ या एसएस माइंड फाइनेंस मेथड एबीएफ मेथड जो हम बोलते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ अ फॉर्मूला। ये 4 सीएमए के फॉर्म 5 में अपने आप जनरेट हो जाता है। हाउ डज दिस फॉर्मूला वर्क आउट इज दैट if you look at row you can always compute it, but if you look at column F which is C minus D which is consist of 75% of the so basically मैंने उसको explain करने की कोशिश की है। तो 75% of the current assets plus export receivables minus current liability other than borrowing ही आपका maximum permissible bank finance आएगा, या आपका actually अगर उसके लो है तो अगर आपको lower amount आएगा as per this formula। सो गवर्नमेंट नॉर्मली हर बैंक एक्सपोर्ट रिसीवेबल्स पे मार्जिन नहीं देता,
हर एनपीबीएफ में एक मेथड, जब आप डेटर्स का पंचिंग करते हैं तो उसमें एक्सपोर्ट डेटर्स और नॉन एक्सपोर्ट डेटर्स अलग अलग डिफाइन होते हैं। सो अगेन सिंस ये फॉर्मूला एक्सपोर्ट रिसीवेबल्स पे मार्जिन नहीं लेता तो हमारा एनपीबीएफ बढ़ेगा अगर हमारे एक्सपोर्ट डेटर्स हैं, तो हमें देखना पड़ता है और हमेशा हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो अगर एक्सपोर्ट रिसीवेबल्स है तो उसको क्लियरली एक्सपोर्ट रिसीवेबल्स के अंदर क्लासिफाई करना चाहिए, अदरवाइज ये फॉर्मूले में हमारे पास एसएस बैंक फाइनेंस कम आएगा। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल while punching in numbers in that CFA model. Again, जो हमने फर्स्ट या सेकंड स्लाइड में बताया था कि वर्किंग कैपिटल कंसिस्ट ऑफ फंड बेस्ड लिमिट एंड नॉन फंड बेस्ड लिमिट। नॉन फंड बेस्ड लिमिट कंसिस्ट ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट का बेसिक जो हम बात करें कि हाउ डू वी कंप्यूट कि कितना लेटर ऑफ क्रेडिट चाहिए, डिपेंड्स ऑन नॉर्मल एनुअल कंजम्पशंस अंडर लेटर ऑफ क्रेडिट। ये इनलैंड के लिए अलग से हमें डिफाइन करना पड़ेगा अपने प्रपोजल में, imported है तो उसको अलग से डिफाइन करना पड़ेगा। there is small template I have made it for myself. You can always mail it to me and then I can share those templates with you कि यहाँ पे आप नंबर पंचिंग करेंगे तो असेसमेंट अपने आप आ जाएगा, एलसी लिमिट का, बैंक गारंटी लिमिट्स का, एंड आपके क्रेडिट्स का अगर आप लेना चाहते हैं तो वो भी आ जाएगा। तो आप हमेशा वो देख सकते हैं कि कितना कितना असेसमेंट होना चाहिए। बट ब्रॉडली लेटर ऑफ क्रेडिट में आप कितना लेटर ऑफ क्रेडिट चाहिए डिपेंड्स ऑन एनुअल कंजम्पशन एंड कंसीडरिंग द लीड टाइम विच इज जो ट्रांजिट टाइम आपको लगेगा फॉर इंपोर्ट। ट्रेड क्रेडिट हमने जैसे डिफाइन किया, इट्स डिफाइंड बाय आरबीआई। मैक्सिमम ट्रेड क्रेडिट फॉर नॉन कैपिटल गुड्स व्हिच इज रॉ मटेरियल इज ओनली फॉर 1 ईयर। बैंक गारंटीज डिफरेंट टाइप्स होती हैं, बिड बॉन्ड, परफॉर्मेंस एडवांस। सो टेक्निकली हमें हर बैंक गारंटी के लिए अलग अलग डिफाइन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हमारा एक ईपीसी कंपनी है जिसका हिट रेशियो, व्हेन आई से हिट रेशियो इट मींस जितना वो बिड करता है और जितना वो अवार्ड करता है वो 1:5 का रेशियो है। तो 5 बिड करता है तो 1 अवार्ड होता है। हम एज्यूम कर रहे हैं उसका टर्नओवर लेट्स अज्यूम अगले 1 साल में 100 करोड़ का, तो नेचुरली ही हैज टू बिड फॉर 500 करोड़। सो बिड बॉन्ड हमें वैसे असेस करना पड़ेगा, अगर 500 करोड़ को बिड करना है उसको 2% का बिड बॉन्ड चाहिए, तो टेक्निकली 500 into 2% is 10 करोड़ रुपीस का उसको बिड बॉन्ड चाहिए, माइनस व्हाटएवर लिमिट्स दे हैव। उसी तरह परफॉर्मेंस बैंक गारंटीज को हमें असेस करना पड़ेगा कि बेसिकली वो परफॉर्मेंस बैंक गारंटीज 1 साल की हैं, 2 साल की हैं, 3 साल की हैं या मोर देन 3 इयर्स हैं। अगर ज्यादा बैंक गारंटीज इलोंगेशन है तो उसकी नेचुरली रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी क्योंकि वो सेल तो हो चुकी है बट उसको परफॉर्मेंस गारंटी स्टिल लाइव इन द सिस्टम। अगेन वो ऑर्डर ड्रिवन डिमांड देखना पड़ेगा। एडवांस पेमेंट गारंटीज, अगर उसको कोई एडवांस मिलता है पेमेंट गारंटीज देने से तो कैसे होता है हमें वो भी देखना पड़ेगा। सो टेक्निकली वी हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर व्हेन वी डिफाइन लेटर ऑफ क्रेडिट, व्हेन वी डिफाइन बैंक गारंटी असेसमेंट्स एंड इंश्योर ईच हेड के लिए हमें अलग अलग डिफाइन कर रखा हो। The major thing in bank guarantee के लिए it is dependent upon order in hands and projected sales. अब हम नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर्स की बात करते हैं। जो नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर्स होते हैं जो क्रेडिट अप्रेजल के लिए होते हैं वो क्या क्या होते हैं और कैसे कैसे उसे डिफाइन करना चाहिए। अगेन जो क्रेडिट क्वेरीज होती हैं वो मोस्टली फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर्स पे डिफाइन होती हैं। इफ वी हैव नॉलेज अबाउट दीज नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर्स एंड हैव अ डिस्कशन तो हम जल्दी से एड्रेस कर सकते हैं बैंकिंग क्वेरीज एंड सो दैट हम उसको जल्दी से कर सकें। फर्स्ट इज सीजनैलिटी ऑफ सेल्स की वो पीक नॉन पीक रिक्वायरमेंट क्या रहती है। अगर उनकी पीक रिक्वायरमेंट रहती है, सपोज एक्सपोर्टर है उसका एक पर्टिकुलर पीरियड पे पीक होता है तो हमें वो एसेस करके देना पड़ेगा। मैनेजमेंट डिस्कशन इन टर्म्स की बेसिकली की प्रोडक्शन पॉलिसीज क्या हैं, सेल्स पॉलिसीज क्या हैं, वेदर हिज नेक्स्ट जनरेशन इज इनटू बिजनेस, सक्सेशन प्लानिंग क्या है। फैक्ट्री विजिट इफ पॉसिबल, अगर हमारे विसिनिटी में फैक्ट्री है वी शुड डू बिकॉज फैक्ट्री विजिट वुड गिव अस अ कंफर्ट कि कैसे प्रोडक्शन पॉलिसीज होती हैं, देन वी कैन हैव अ मच मोर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आजकल बैंक स्टेटमेंट एनालिसिस प्रोसेस डिजिटाइज हो चुका है, इसमें नथिंग बट चेक रिटर्न्स और कितना रूटिंग हो रखा है बैंक्स, कितना टर्नओवर रूटिंग हो रखा है एज कंपेयर टू टर्नओवर प्रोजेक्टेड, वो हमें देखना पड़ेगा बेसिकली कि बैंक के थ्रू कितना पैसा आया हमें लास्ट ईयर 1 ईयर में, वो भी बैंक्स देखना चाहते हैं। डीपी स्टेटमेंट, अगर हमने सीसी मांग रहे हैं तो लास्ट 6 मंथ्स की डीपी स्टेटमेंट में कैसे कैसे मूवमेंट है वर्सेस हमारे प्रोजेक्टेड मूवमेंट्स कैसे हैं। कोलैटरल कवर विद एग्जिस्टिंग बैंक्स, बहुत सारे बैंक्स चाहते हैं कि हमारा कोलैटरल कवर पिछले बैंकों से कम ना हो, इसलिए वो बोलते हैं स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट, कंसोर्शियम रिपोर्ट्स, ग्रुप कंपनीज परफॉर्मेंस, अगर कोई और ग्रुप कंपनीज हमारी उनका नंबर्स क्या हैं, अगर वो लॉसेस में है तो कौन फंड कर रहा है, अगर वो प्रॉफिट है तो प्रॉफिट वेदर इट कैन बी डिप्लॉयड बैक और नॉट, ये सब हमें पीयर एनालिसिस ये सब देखने की जरूरत है। अगेन फ्यूचर प्लान्स क्या है, कैपेक्स प्लान्स क्या है, रेफरेंसेस बैंक्स लेने की कोशिश करते हैं, टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शंस तो नहीं है उस इंडस्ट्री में आप फंड करना चाह रहे हैं।
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, की रिस्क एंड प्रपोजल एंड इट्स मिटिगेंट। सो हमें समझना पड़ेगा कि हमारे हर प्रपोजल में कुछ ना कुछ की रिस्क इन्वॉल्व है और उसके मिटिगेंट हमें ढूंढ के मैनेजमेंट से डिस्कस करके बैंकर्स को फर्स्ट स्टेज पे ही बताने पड़ेंगे, क्योंकि अगर हम वो बता पाएंगे इट बिकम्स मोर लाइफ इजियर, बिकॉज उनके लिए, वरना अदरवाइज क्या होगा कि हमारा प्रपोजल इनकम्प्लीट जाएगा। वो रिस्क एनालिस्ट या जो सैंक्शनर है वो खाली रिस्क निकाल पाएंगे, उसके मिटिगेंट्स निकालने की कोशिश करेंगे, बट अगर हम उनको पहले से ही दे देंगे तो इट वुड रिड्यूस द टाइमलाइन एंड इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फॉर आवर प्रपोजल। सो हमें हमेशा देखना चाहिए कि इस प्रपोजल में व्हाट आर द की, इस पूरे प्रपोजल में या इस कॉर्पोरेट को लेंडिंग में क्या रिस्क है और उसके मिटिगेंट्स क्या क्या अवेलेबल हैं हमारे पास। हर बैंक की इंटरनल क्रेडिट रेटिंग्स होती हैं, वो स्टॉक मूवमेंट्स भी आजकल देखते हैं कि अगर स्टॉक मूवमेंट्स हो रही हैं और इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन है, ऑल्दो आज की डेट में तो कोविड की वजह से बहुत मूवमेंट्स हो रही हैं, बट अदरवाइज नॉर्मल मूवमेंट्स क्या स्टॉक मूवमेंट्स हैं, बिकॉज पीपल से दैट दे एंटिसिपेट, स्टॉक मार्केट एंटिसिपेट इन फ्यूचर क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है। लीगल हिस्ट्री, आई एम नॉट गोइंग इनटू सिबिल्स एंड ऑल दोस कोर्स, वो तो करेगा बैंकर्स नॉर्मली सिचुएशंस में होता है। एक अनहेज्ड फॉरेन करेंसी एक्सपोजर्स भी मांगना स्टार्ट कर दिया एज पर द आरबीआई गाइडलाइंस। एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग भी हमने बहुत बारी सुना होगा कि व्हाट आर एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग्स। देयर आर 7 एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग्स। ये क्रेडिट रेटिंग्स आरबीआई से अप्रूव्ड है, व्हिच इज केयर, क्रिसिल, फिच, इक्रास, मेरा, ब्रेकवर्क्स, इन्फोमेट्रिक्स। इन्फोमेट्रिक्स इज लास्ट वन व्हिच इज अप्रूव्ड। व्हाई क्रेडिट रेटिंग इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज क्रेडिट रेटिंग हमारा बैंक्स का कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स डिफाइन करती है। एज पर normal terminology, anything which any instrument below BBB minus, which is BB and below, is considered as junk rating. तो इसीलिए इसको 150% का रिस्क वेट दे रखा है। अगर हम देखेंगे सो टेक्निकली अगर हमारा अनरेटेड प्रपोजल है तब भी 100% रिस्क वेट है, जबकि अगर हमारा BB या उससे नीचे है तो 150% रिस्क वेट हो जाता है। तो अगर हमें लगता है हमारा क्रेडिट प्रपोजल जो हमारा या हमारी कंपनी की अभी इतनी साउंड फाइनेंशियल स्ट्रेंथ नहीं है कि BBB आ जाएगा, सो हमें ध्यान से रेटिंग करानी चाहिए एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग, क्योंकि कई बार एंट्री पॉइंट बैरियर होता है, स्पेशली विद प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, कि वो बोलते हैं कि हम BB या BBB माइनस प्रपोजल करेंगे ही नहीं। सो ऐसा ना हो, अनरेटेड को करने को तैयार होते हैं बट BBB माइनस से नीचे नहीं करने को तैयार होते, तो कहीं ऐसा ना हो कि हम उस सिचुएशन में फंस जाएं जहां पे बिकॉज ऑफ BB रेटिंग वी आर नॉट एबल टू गेट अ क्रेडिट असेसमेंट डन। So again, prudential master circular and prudential guideline on capital adequacy एक circular है, you can always go and understand कि capital adequacy कैसे define होती है, because it's again a very lengthy topic जो आप देख सकते हैं। ये सबसे important topic होता है बैंकर्स का कि what is the security. There are 4 types of security which banker ask. Primary security which is hypothecation current assets working capital में, plus they would also ask charge on the fixed assets which is not linked to other bankers. Collateral में हमें टाइप क्या है, उसकी वैल्यूएशन क्या है, हेयर कट क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि एग्जिस्टिंग बैंक कोलैटरल कवर, अगर हम मल्टीपल बैंकिंग अरेंजमेंट में जा रहे हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि एग्जिस्टिंग के पास क्या सिक्योरिटी कवर है और उसी सिक्योरिटी कवर पे बैंक काम करना चाहते हैं। सो अगर किसी बैंक के पास एग्जिस्टिंग 80% सिक्योरिटी कवर है तो नया बैंक अगर आएगा फॉर एनहांसमेंट, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रिंग इट एट अ लोअर सिक्योरिटी कवर। सो अगर हम पहले से डिफाइन कर लें, अपने कस्टमर से बात कर लें कि सर इट्स डिफिकल्ट to get a new bank at a lower security cover, it becomes much more easier, because it becomes easier to convince the customer and the banker also, because people don't want to come at a lower or inferior security cover. Personal guarantees of directors भी involved होती हैं, because these are not large corporates like Maruti, जहाँ पे हम बोले directors are not responsible for each and individual director is not responsible, but most of the times they ask for key either managing directors or other directors guarantees. कॉर्पोरेट गारंटी ऑफ ग्रुप कंपनीज, अगर मेरी कोई ग्रुप कंपनी है फॉरेन में या इंडिया में जो कि बहुत बड़ी है और जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, उसकी कॉर्पोरेट गारंटीज लोग मांगेंगे, या फिर वो बोलेंगे कि अगर वो जब पर्सनल गारंटीज मांगेंगे, सो वी हैव टू आल्सो डिस्कस अपफ्रंट विद आवर कस्टमर कि वो कॉर्पोरेट गारंटीज अवेलेबल होंगी नहीं होंगी, दूसरा बैंक जो पहले एग्जिस्टिंग है उसके पास है कि नहीं है, एंड इफ ही इज नॉट एबल टू प्रोवाइड, व्हाट आर द लॉजिक्स ऑफ नॉट प्रोवाइडिंग दोस कॉर्पोरेट गारंटी। कारो 2020 आया है, अगेन यू कैन ऑलवेज हैव अ डिटेल्ड डिस्कशन ऑन इट, बट ये सब जब हम कारो पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें हमें एज अ क्रेडिट अप्रेजल के लिए हमें मिल जाती हैं, व्हिच इज फिक्स्ड एसेट्स, क्वार्टरली मूवमेंट्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, पेमेंट ऑफ सब्सिडी ड्यूज और टाइम, जो नया है डिफॉल्टिंग पेमेंट्स ऑफ लोन एंड बोरोइंग्स, एंड यूसेज ऑफ टर्म लोन्स एंड वर्किंग कैपिटल। सो बेसिकली दीस वुड हेल्प अस टू आइडेंटिफाई कि वेदर कस्टमर हैज डिफॉल्टेड इन पास्ट और जो उसने टर्म लोन लिए हैं उसका पर्पस सही है या नहीं है। सो कारो एंड हिस्टोरिकल एनालिसिस ऑफ डेटा वुड आल्सो हेल्प अस टू अंडरस्टैंड कि
कि क्रेडिट अप्रेजल कैसे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए. Quickly, I will also discuss upcoming trend, digitalization of MCA data. बहुत सारी वेबसाइट्स आ गई हैं जो अब प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनीज के लिए आपको डेटा एक्सेस अपफ्रंट प्रोवाइड करती है. यू डोंट हैव टू गो टू MCA गाइड, फुल बैलेंस शीट, वो कुछ सब्सक्रिप्शन आप कर सकते हैं, वो आपको लास्ट 3 years डेटा एनालाइज करके दे देंगी, along with external rating, along with key management data, along with movement of secure MCA पे, along with movement of that charge, filing of charge. ऑटोमेशन ऑफ क्रेडिट प्रोसेस बहुत सारे बैंकों ने इन्हीं साइट्स का इंटीग्रेट कर रखा है अपने डेटा, सो दे वुड गेट ऑल द डेटा अपफ्रंट विदाउट डूइंग द एंटायर स्कीम ऑफ हिस्टोरिकल डेटा. प्रोजेक्शन अभी भी चाहिए होंगी, बट हिस्टोरिकल डेटा. लीगल हिस्ट्री रिपोर्ट्स, अगेन दीस अपकमिंग ट्रेंड्स हैं जो प्रोवाइड करते हैं कि बेसिकली वेदर देयर आर केसेस अगेंस्ट द कंपनी और वेदर कंपनी हैज फाइल्ड सर्टेन केसेस एंड उनका क्या सिचुएशन है, यू कैन ऑलवेज डिस्कस विद द कंपनी. सिस्टम ड्रिवन एक्सप्लोरेशन फॉर प्रोजेक्शन, अगेन देयर आर सर्टेन साइट्स जहां पर आप assumption दे सकते हैं, बेसिस दोस assumptions आपको प्रोजेक्शन एक्सट्रापोलेट हो सकती है. ब्रॉडली, सिंस हमने इसे डिस्कस किया कि हर बैंक में प्रोसेस ऑफ क्रेडिट अप्रेजल डिफर करता है, ब्रॉडली आई हैव ट्राई टू डिफाइन कि ब्रॉडली कैसे करता है. तो बेसिकली इनिशियल डिस्कशन हमारा ब्रांचेस में होता है, नेशनलाइज ब्रांचेस में हम जैसे बोलेंगे, या हम प्राइवेट सेक्टर बैंक में बोले, रिलेशनशिप मैनेजर्स के साथ हम डिस्कस करते हैं. नॉर्मली मैं क्या करता हूँ आज की डेट में, एक शॉर्ट नोट भी देता हूँ अलॉन्ग विद द CMA डेटा, जो बेसिक पॉइंट्स जो हमने पहले पढ़े हैं उनमें से कवर करता है, सो दैट इट बिकम्स इजियर फॉर द बैंकर टू टेक अ कॉल वेदर ही वुड बी कंफर्टेबल और नॉट, या उसकी पॉलिसीज पैरामीटर्स में आएगा नहीं आएगा. प्लस व्हेन ही कम्स फॉर द फर्स्ट मीटिंग इटसेल्फ वो सारी चीजें डिस्कस कर लेता है, प्लस उसकी प्रपोजल राइटिंग में भी आसान हो जाता है. सो वी कैन कॉल इट एज शॉर्ट नोट, टीजर और ब्रीफ नोट, बट ये सब डेटा हमें हेल्प करता है डिफाइन करने के लिए. सो हमें वो सब अगर हो सके तो हमें वो सब डेटा प्रोवाइड कर देना चाहिए बैंकर्स को अपफ्रंट, दिस इज कॉल्ड एज अ शॉर्ट नोट इटसेल्फ. प्रोसेस की बात करें तो ब्रांचेस में डिस्कशन होता है, गोस टू जोनल ऑफिस क्वेरीज भेजता है. अगेन इफ वी हैव डन ऑल दीस थिंग्स, वी हैव कवर्ड व्हाटएवर वी हैव कवर्ड नॉन फाइनेंशियल पार्ट, अगर तो मोर और लेस क्वेरी उन्हीं के रिलेटेड होगी. अगर हम जल्दी से रिप्लाई कर पाएंगे इन अ प्रॉपर मैनर, तो probability increases and time reduces. Again, depending upon the size of proposal and the bank policies, it would go to the next higher up, which is head office for recommendation proposal. In most of the banks it is through email which it goes, or through certain processes or software which goes. Approval rejection comes with levy of pre and post disbursement conditions. Again, it's a very long topic कि प्री डिसबर्समेंट कंडीशंस कैसे हो सकती हैं, पोस्ट डिसबर्समेंट कंडीशन कैसे हो सकती है. बट नॉर्मली सैंक्शनर चाहता है कि बहुत सारी कंडीशन की लेवी कर देता है कि दीज आर पोस्ट डिसबर्समेंट कंडीशंस, जहां पे आपको कंप्लाई करना पड़ेगा इन पॉइंट्स पे. अगर आपको पैसा ले लिया जब का डिसबर्समेंट हो गया, या आपको प्री डिसबर्समेंट कंडीशन होगा. फॉर एग्जांपल, अगर आपका प्रपोजल में क्रेडिट रेटिंग इन्वॉल्व है तो वो बोल सकता है कि आपको पहले एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग करवानी पड़ेगी, या वो बोल सकते हैं कि आपने अगर अपने अनसिक्योर्ड लोन बढ़ा रखे हैं कि आपको प्रोमोटर इन्फ्यूजन करना पड़ेगा या अनसिक्योर्ड लोन इन्फ्यूजन होना पड़ेगा, तभी आप पैसा देंगे फॉर वर्किंग कैपिटल. टर्म लोन्स के लिए तो अलग से हमें देखना पड़ेगा कि व्हाट आर प्री डिसबर्समेंट एंड पोस्ट डिसबर्समेंट कंडीशंस. फाइनली, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लायंस ऑफ प्री डिसबर्समेंट कंडीशंस एंड डिसबर्समेंट. What is the impact of COVID on these financials? So basically, as we have seen in the first tranche, RBI ने हम बोला कि interest EMI and NC payments का devolvement नहीं होगा. I have talked to various nationalized bank, depending on bank to bank, 10% से 20% तक बैंकर्स ने एडहॉक लिमिट प्रोवाइड करना स्टार्ट किया है, नेशनलाइज्ड बैंकर्स ने, ऑफ द वर्किंग कैपिटल लिमिट्स. दिस इज प्रोवाइडेड आइदर इन फॉर्म ऑफ, मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ टर्म लोन रेंजिंग फ्रॉम 1 year to 2 years, अगेन फ्रॉम बैंक टू बैंक पॉलिसीज. किसी ने 6 months का मॉनिटोरियम दिया है, रिपेमेंट विद इन नेक्स्ट 6 months. अगर 2 साल का है, सो किसी ने 15% फर्स्ट 6 months में है, उसके बाद इक्वली इक्वेटेड है. But most of the nationalized bank had drafted a policy wherein they are providing 10 to 20% of ad hoc limits in form of term loans to be given in next 1 to 2 years. Impact of financial ratios and ratios जो हम CA में बनाएंगे, हमें देखना पड़ेगा कि उसका ratios क्या है. अगर हमारी वर्किंग कैपिटल साइकिल जो हमने पहले देखा कि कैसे बढ़ रही है, अगर वो बढ़ेगी इस कोविड के इम्पैक्ट से तो कितनी बढ़ रही है, वो हमें क्लियरली डिफाइन करके देखना पड़ेगा. अगेन, ड्राइंग पावर इज अ रिलेटेड कॉन्सेप्ट, क्योंकि अगर हमने वर्किंग कैपिटल सैंक्शन करा दिया, हमें डीपी नहीं बनता, तो वी विल नॉट बी एबल टू ड्रॉ इट. Impact of credit and external rating is an important concept, because external जो BBB minus या BBB rated है customers, उनका क्या impact होगा external credit rating का, we have to see that. Because जितना भी rating agencies का models में देखता हूँ, most key factor are sales
इंक्रीज इन सेल्स एंड इंक्रीज इन प्रॉफिटेबिलिटी जो लास्ट ईयर हिट हुआ होगा मोस्ट ऑफ द बैलेंस शीट्स में, तो उसके अगर वो हिट हुआ होगा तो वो रेटिंग उनकी कैसे आएगी, कैसे डिफाइन नहीं होगी, वी हैव टू सी दैट. So that's the area which I also don't know how does it plan out. We have to discuss with the rating agency once the lockdown opens up कि कैसे होता है कैसे नहीं होता. There is additional support which is required in form of again ad hoc limits or in terms of liquidity. What are those factors हमें वो देखना पड़ेगा. These are basic compendium of RBI guidelines or which I have referred in my presentation. There are other master circulars also which you can always read and have a idea about, and that's it. So I think we are mostly done about, so that at least we can have around 20 minutes for various questions. I'll try to answer most of them whatever I can, otherwise I'll find it out and then send it you over email. या विभोर जी बहुत ही अच्छा, आपने हमें एक ओवरव्यू मिल गया सारी चीजों का, so in a such a technical and quick manner. So we will be taking questions. So the question is from Mr. Arav Jain. So he says that ECB is always cheaper than RTL. So what is your view on exploring ECB as a better option, and how do we compare these costs? He is right that ECB is always better than RTL, but problem क्या होता है कि ECB में जैसे मैंने बोला कि there are RBI guidelines. अगर वो आप comply कर रहे हैं RBI guidelines को in terms of security creation and compliances, because external advocates भी involved होते हैं. अगर वो छोटा लोन है 1 मिलियन 2 मिलियन का तो difficult है. अगर आपको compare करना है, बहुत छोटा सा फॉर्मूला है. आप ECB कॉस्ट प्लस एक्सपोर्ट, आप जितने भी साल का ECB ले रहे हैं, यू कैन ऑलवेज फाइंड आउट फ्रॉम वेरियस बैंक्स और अपना राउटर्स पे जाके या किसी और से या किसी और मीडियम से कि व्हाट इज द हेजिंग कॉस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड. फॉर एग्जांपल 5 साल का हेजिंग कॉस्ट क्या आएगा ऑन एनुअलाइज्ड बेसिस. सो आपका अगर ECB हम बोले L प्लस 200 पे होता है, L प्लस 300 पे होता है, L ब्रॉडली 1.9 है, 2% ले लेते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग 6 मंथ्स L. तो 2 प्लस 2 4% हो जाता है, प्लस अगर मेरा 6% अगर हेजिंग कॉस्ट आता है, लेट्स अज्यूम, तो मेरा वो कॉस्टिंग 10% पड़ गया, तो मैं उसको रुपी टर्म लोन से मैं कंपेयर कर सकता हूं कि अगर वो 10% से नीचे है तो मैं आई कैन गो फॉर रुपी टर्म लोन बिकॉज देन इट इज मच मोर बेनिफिशियल फॉर मी. अदरवाइज क्या होगा कि मैं कॉम्प्लेक्सिटीज में तो जा रहा हूं क्योंकि उसकी रीपेमेंट, उसकी रीफाइनेंसिंग ECB की is again subject to certain guidelines. So this is how broadly you can compare कि फॉरवर्ड प्रीमियम्स कितने चल रहे हैं मार्केट में और हेजिंग कॉस्ट क्या है, प्लस योर एक्सपोर्ट plus ECB cost plus compliance cost equal to or greater than or less than the INR loan. विभोर जी कितना जनरली इसमें इंटरेस्ट रेट ECB में जनरली कितना रहता है? LIBOR plus 300 basis, since again it depends upon because ECB बाहर की इंस्टीट्यूशन से प्रोवाइड हुआ जाता है. So अभी क्या हुआ है कि बहुत सारे इंडियन बैंक्स ने गिफ्ट सिटी व्हिच इज इन गुजरात एक RBI डिफाइंड प्रोसेस कर रखा है जिसमें वो डिफाइन कर दे, जिसमें उन्होंने एक पर्टिकुलर एरिया को दे हैव कंसीडर्ड इज एज अ क्लस्टर आउटसाइड इंडिया फॉर रेगुलेटरी पर्पसेस. सो अभी वो देखना पड़ेगा क्योंकि बिकॉज ऑफ पोस्ट कोविड क्या होगा, अदरवाइज डिपेंडिंग ऑन रेटिंग यू कैन इजीली गेट इट एज L+2 या 3 के बीच में कर सकते हैं. सो LIBOR अगर आज की डेट में देखें 1.9 है, 1.9 या 2% पकड़ लेते हैं फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन, तो 2% प्लस 2% तो 4-4.5% पे या 5% पे आपको मिल सकता है depending on rating, but again this is how you compare it. अगर वो आपका एक्सपोर्टर है तो आपको हाँ एक और चीज आपको सौरभ से देखनी पड़ेगी, अगर आपको वो एक्सपोर्टर है तो आपको हेजिंग कराने की जरूरत नहीं है ब्रॉडली, अगर वो नॉर्मल प्रोसेस को हेज नहीं करता क्योंकि पेमेंट तो बाहर से आना ही है, वो लुक्रेटिव बिकॉज़ वो हेजिंग का कॉस्ट एग्जैक्टली, तो पेमेंट बाहर से आना. तो अगर वो एक्सपोर्टर है कि नहीं है, प्लस अगर वो एक्सपोर्टर नहीं है बट वो इंपोर्टेड मशीनरी मंगा रहा है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कैपिटल गुड्स का जो ट्रेड क्रेडिट्स है वो रूट ले लीजिए, जो कैपेक्स एलसीज का रूट होता है व्हिच इज मच मोर चीपर. वो ECB से भी चीपर होता है और इंडियन बैंक से दे देते हैं, तो उसमें कंप्लायंसेस की भी जरूरत नहीं पड़ती. राइट. सर नेक्स्ट क्वेश्चन आरव जैन जी का है, तो ये पूछ रहे हैं कि कंसीडरिंग हाउ सच लो PPS एंड लो रेट ऑन एक्सचेंज डू यू कंसीडर रिन्यूएबल एनर्जी ऑन PSL? PSL मेरे आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट द PSL, बट रिन्यूएबल एनर्जी आई थिंक अराउंड 15 करोड़ का लिमिट है जो डिफाइन करता है. देयर इज अ मास्टर सर्कुलर बिकॉज़ वो RBI डिपेंडिंग ऑन टाइम टू टाइम वो डेफिनेशन चेंज करती रहती है. यू कैन ऑलवेज गो एंड सी दैट सर्कुलर एंड अंडरस्टैंड वेदर दैट प्रपोजल और कस्टमर फॉल्स अंडर दैट कैटेगरी और नॉट. बट आई थिंक रिन्यूएबल एनर्जी का 15 करोड़ का कैपिंग है, व्हाट आई अंडरस्टैंड इफ आई रिकॉल करेक्टली. नेक्स्ट क्वेश्चन प्रियंका अग्रवाल जी का है.
She is asking whether MPBF also includes non-fund based limits. नहीं, नॉन फंड बेस्ड लिमिट्स इंक्लूड नहीं होता, बट अगर आपने क्रेडिट फॉर आपने एलसी पेमेंट्स ले रखे हैं तो आपके वो क्रेडिटर्स होंगे। सो वो आपको उतना लेवल ऑफ क्रेडिटर्स दिखाना पड़ेगा, क्योंकि वो क्रेडिटर्स तो आपके, अगर आपने बोला मैं 6 मंथ्स का एलसी लेता हूँ फ्रॉम डेट ऑफ शिपमेंट, तो 6 मंथ्स का आपको क्रेडिट पीरियड दिखाना पड़ेगा। मतलब इट्स अ वर्किंग विच यू हैव टू डू फॉर कि टोटल आपने नॉन क्रेडिट एलसीज कितनी है और क्रेडिट एलसीज कितनी है और क्रेडिटर्स अंडर एलसीज कितने हैं, नॉन क्रेडिटर एलसीज कितने हैं, डिफाइन करके आपको क्रेडिटर लेवल दिखाना पड़ेगा। सो बैंक गारंटी फॉल नहीं होता, बट अगर आप एलसी ले रहे हैं तो क्रेडिटर अंडर एलसी को भी आपको अपने सीएमए में एनपीबीएफ में डालना पड़ेगा टू इंश्योर दैट इट्स करेक्ट। So next question is from Mr. Ashok Choradia. He is asking, in this 20% LC, will it be included for only CC FB limits or for this cap? This is the assessment which RBI defines is more for a fund-based assessment, not for a non-fund-based assessment. So basically, it's more for a fund-based assessment which they defined it. So next, Rajkumar Dua ji पूछ रहे हैं, what is the ROI for non-SSI turnover loan? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है सर? अगेन हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगेन सर वो डिपेंड करता है बैंकर टू बैंकर में। आज की डेट में बहुत डिफाइन करना मुश्किल है, बट अराउंड क्लोज टू अराउंड आपको 9 से 10% के बीच में मिल जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन, बिकॉज आप नॉन एसएसआई का आप लेना जाएंगे तो अगर 1 करोड़ से ऊपर नहीं लेंगे तो सीजीटीएमएससी के रूट में भी आप ले सकते हैं। लेकिन सीजीटीएसएमई में आजकल गवर्नमेंट तो अनाउंस कर रही है, लेकिन आई थिंक बैंकर्स एंटरटेन करते नहीं है प्रपोजल्स। विजय जी आपने एकदम सही बोला, क्योंकि उनका डिफॉल्ट रेशियो इतनी ज्यादा हो चुका है इस प्रोडक्ट में। ऑल्दो 85% व्हाट आई अंडरस्टैंड 85% इज स्टिल protected from credit guarantee fund, but then also for 15% they are not taking that call, but और कोई ऑप्शन नहीं है विजय जी, बिकॉज अगर आप अनसिक्योर्ड लोन पे जाना चाहेंगे which is very high costing from normal banks जो आपको 2-3 साल के लिए मिलते हैं, वो बहुत हाई कॉस्टिंग होते हैं as compared to CGTMSE। डेफिनेटली उसकी वजह से तो आई थिंक यूनिट ही बंद होने के कगार पे आ जाती है। करेक्ट, तो इसलिए बेटर वही है कि ये जो आपने पहले बताया कि जो एलसी वाले जो क्रेडिटर्स हैं, so will they be included for the purpose of calculation of DP limits? Yes, they would be. Next question is from आशा शर्मा जी का क्वेश्चन है, कैन यू प्लीज प्रोवाइड नेम ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो कि इंडस्ट्री डाटा प्रोवाइड कर रहे हो फ्री में या फिर जो भी रिलायबल हो वो? आप क्रिसिल केयर और इकरा की साइट पे दे सकते हैं, क्योंकि वो डेटा पब्लिश करते रहते हैं, एंड अगर आप उनके आरएम से रिलेशनशिप मैनेजर से बात कर सकते हैं तो दे कैन आल्सो प्रोवाइड यू सम सॉर्ट ऑफ फ्री डेटा। मेरे पास भी आता रहता है, यू कैन शेयर, यू कैन टेक्स्ट मी, पिंग मी, व्हाटएवर आई कैन, व्हाटएवर व्हेनेवर इट कम्स आई कैन शेयर इट विद यू। विभोर जी इनके कुछ मंथली न्यूज़लेटर या जर्नल आते होंगे आई थिंक रिपोर्ट्स प्रोजेक्शंस के लिए। आई डोंट नो फ्रीक्वेंसी क्या है, बट आते रहते हैं पब्लिकेशंस मेरे पास, तो मेरे पास भी इकरा की मेल आती रहती है, नो डाउट। So I think it's more about your relationship with that credit rating agency. I think वो अपनी साइट पे भी डालते हैं, प्लस वो आपको मेल भी करते रहते हैं। So once it's more a customer, so you can always ping me या विजय जी को मेल कर सकते हैं, वो आपको वो अपने मेलिंग लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, आपके पास आ जाएगा वो डेटा। So it is freely available. Next question is from Rajesh Jindal ji. So he is asking, what is your thumb rule for maximum working capital limit available on say X amount of sales? कितना उसका लिमिट मिल सकता है वर्किंग कैपिटल? ब्रॉडली थंब रूल की जो हम बात करें तो हम 25% की बात करते हैं कि 25% ऑफ द लिमिट शुड बी एज अ वर्किंग कैपिटल होना चाहिए, तो 25% होना चाहिए। सो दैट इज अ थंब रूल। A very broad thumb rule is 25%. But again, वो डिपेंड करता है मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग है, बट ब्रॉडली 25% is a decent number which we can safely assume. तो संदीप गुप्ता जी पूछ रहे हैं, how to compute LC import? So how to compute LC import? सर बहुत आसान है। बेसिकली आपने कितना इंपोर्ट करने वाले हो डिवाइडेड बाय 12 कर लीजिए, पर मंथ आपका इंपोर्ट आ जाएगा, उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए आपका एलसी टेनर कितना होगा, प्लस लीड टाइम ऐड कर लीजिए। सो मैंने जैसे बताया, आप मुझे पिंग कर सकते हैं मेरे मेल आईडी पे, मैंने एक छोटा सा टेम्पलेट बना रखा है, इट्स नथिंग बट जो मैंने अभी बोला फॉर्मूला वही है, आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो बेसिकली मंथली कंजम्पशन ऑफ योर इंपोर्टेड गुड्स और डोमेस्टिक गुड्स अंडर एलसी इनटू नंबर ऑफ मंथ्स फॉर व्हिच एलसी टेनर इज रिक्वायर्ड प्लस लीड टाइम व्हिच इज मैक्सिमम लिमिट भी विभोर जी कुछ तो होगा, आई थिंक एलसी 3 महीने से ज्यादा तो नहीं होना चाहिए। विजय जी जो ट्रेड नहीं मोर ऐसा कोई आरबीआई कैपिटल गुड्स और नॉन कैपिटल गुड्स की एलसी का डिफाइन करता है,
मेरे हिसाब से नॉन कैपिटल गुड्स इज फॉर 1 ईयर इंक्लूडिंग ट्रेड क्रेडिट। सो आप डबल नहीं फाइनेंस कर सकते। आप बोल नहीं सकते कि मैं इंपोर्ट एलसी 1 साल के ले लूं, फिर मैं उसका ट्रेड 1 साल का ले लूं। टोटल ड्यूरेशन इज 1 ईयर जो ट्रेड क्रेडिट्स अवेलेबल है, और फॉर नॉन कैपिटल गुड्स 3 साल है। Okay. So next question is from CA Jasveer Kumar ji. So he's asking, can you explain the example how both the component of EMI, that is the interest and principal, will exist when it will required adjust in future, and if we avail moratorium for EMI during this COVID period? So जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है और जो मैंने बात की है, इट इज नथिंग बट वो 3 महीने का आपको इलोंगेशन कर दिया आपका। इंस्टेड इन द सीसी सिचुएशन आपको 3 महीने का ब्याज इकट्ठे देना पड़ेगा जून में। फॉर EMI यू डोंट हैव टू पे, द लोन हैज बीन एक्सटेंडेड फॉर 3 मंथ्स। तो अगर आपने लेट्स अज्यूम 3 साल का या 5 साल का लोन लिया था, वो 3 साल की जगह 3 साल 3 महीने का हो गया। फॉर एग्जांपल आपने 5 साल का लोन लिया था, अब वो 3 साल रहता था, अब वो 3 साल 3 महीने का लोन हो गया व्हेनेवर यू पे। सो आई डोंट थिंक सो। So it's a calculation based formula। आपको EMI कैलकुलेटर्स अवेलेबल है फ्रीली नेट पे, तो आप वो डाल सकते हैं, देख सकते हैं कि वो क्या आपका नया EMI आएगा, बिकॉज थोड़ा सा टेनर इलोंगेट हो चुका है आपका EMI का। विभोर जी, मेरे हिसाब से इसके अंदर जो 3 महीने का मोरिटोरियम दिया है, मोरिटोरियम इज फॉर एवरी पर्पज एक्सेप्ट द इंटरेस्ट वेवर। इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, बाकी नाइदर इट विल बी योर हैम्पर योर सिविल रेटिंग और इंटरेस्ट प्रेशर, हर चीज को डेफर कर दिया गया है। बस मतलब इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट नहीं करा है, अदरवाइज इसको ना तो सीसी की कैलकुलेशन में लिया जाएगा, ना एनुअल टर्नओवर के अंदर जो आपका 3 महीने का टर्नओवर कम हो गया ना उस पर्पस से लिया जाएगा। ये करेक्ट इंटरेस्ट बस देना पड़ेगा आपको। हाँ, बट वो क्या होता है कि अगर उनका बोलते हैं ना, खाली एक ही है कि अगर आप रिटेल प्रोडक्ट्स की लैब की बात करते हैं या होम लोन्स की बात करते हैं तो उसमें EMI जाती है। उसमें तो EMI कॉन्सेप्ट, उसमें EMI डिफर हो जाएगी इंस्टेड ऑफ इंटरेस्ट। टर्म कॉर्पोरेट लोन्स में ऐसा ही होना चाहिए। इसमें भी डीपी बेस रेफर हो जाएगी, 3 महीने के लिए डीपी कैलकुलेट करेंगे नहीं। करेक्ट, यू आर राइट विजय जी। Vibhor ji, next question is from Mr. Avinav Puri. He is asking if you can provide some names of MCA data and legal history report sites, websites. जो आपने बताया कि कुछ डेटा हम निकाल सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, so which are those vendors who can give such kind of analysis of the financial data? ज़ोबा है एक जो फ्री में, अगर आप चार्ज का डेटा नॉर्मली फॉर ओनली सीइंग द चार्जेस मोस्ट ऑफ देम प्रोवाइड यू फ्री ऑफ कॉस्ट, बट अगर आपको नंबर्स देखने पड़ते हैं ऑल ऑफ रेट, Pro 42 is I think is one of the better ones, but वो subscriber based है। Pro 42 you can always go and ask them. So then and Score Me, I think Score Me भी एक और आता है, plus I think Zoba and other, if you search it you can get a lot of them. Zoba is much comfortable site to search the company data, directors address, charges. हाँ, but अगर आपको अगर नंबर ऑफ आपको टर्नओवर और एग्जैक्ट डेटा चाहिए तो आपको वो पेड है। यस यस। विभोर जी, बोलिए सर। PS Asija जी का क्वेश्चन है। PS Asija जी पूछते हैं कि काइंडली इलैबोरेट ऑन द कॉर्पोरेट गारंटीज, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट एंड व्हाट क्लॉजेस डज इट कंटेन्स? कॉर्पोरेट गारंटी, सर कॉर्पोरेट गारंटी का कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं होता, वो हर बैंक टू बैंक डिफाइन होता है, बट नॉर्मली कॉर्पोरेट गारंटी सेज दैट इफ द it's a second recourse which they have, mostly वो second recourse होता है, if the company is not able to pay then they can invoke that corporate guarantee and then they can force that corporate to pay up that loan without invoking that security when they have. So normally parallelly with enforcement of the security they would invoke the corporate guarantee. So depends on bank to bank वो corporate guarantees होती हैं। ये सिचुएशन तब आती है जब वो आप एक कॉर्पोरेट, जब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट है, आप उसकी सब्सिडरी को लेंड कर रहे हो और कोई सिक्योरिटी नहीं है, या वो कॉर्पोरेट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, वो लॉसेस में है, तभी उसको वर्किंग कैपिटल चाहिए, तो आप कैसे करोगे? सो उसका एक सबसे आसान तरीका है कि आपका कॉर्पोरेट गारंटीज, अगर आपकी स्ट्रांगली रेटेड कॉर्पोरेट है, सपोज वो A रेटेड या AA रेटेड कॉर्पोरेट है, तो वो 2000 करोड़ की कंपनी, उसकी छोटी कंपनी है जो काम नहीं कर पा रही थी, क्या लॉसेस में है, सिक्योरिटी नहीं है, इन दैट सिचुएशन यू टेक कॉर्पोरेट गारंटीज एंड ट्राई टू वर्क इट आउट, बिकॉज जैसे आप कॉर्पोरेट गारंटी लेते हो, मोर और लेस बैंक सेज दैट, and in fact credit rating also says that कि आपकी रेटिंग इक्वल टू दैट कॉर्पोरेट होती है, तो इसको स्ट्रक्चर्ड ऑब्लिगेशन रेटिंग कहते हैं, SO रेटिंग बोलते हैं जो हम टेक्निकली हमारी भाषा में, तो स्ट्रक्चर्ड ऑब्लिगेशन रेटिंग हो जाती है, तो मतलब आपके चाहे लॉसेस में भी कंपनी है, आपकी रेटिंग बिकॉज ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट अब आप उसकी सेम रेटिंग पे आ गए, सो आपकी कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स भी कम हो जाते हैं, प्लस इट्स इजियर फॉर अ बैंक टू एसेस इट बिकॉज आपकी रेटिंग वही आ जाती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मिस्टर जितेंद्र जागिया।
He is asking, do you have any recommendation for any good software for preparation of CMA or project reports, project finance report? सर मैं कोई सॉफ्टवेयर यूज नहीं करता, मैं नॉर्मल अपना स्टैंडर्ड टेम्पलेट यूज करता हूँ, बट over period of time I have developed certain models in it, which is very unique and it's individual driven, क्योंकि आप जैसे नंबर पंचिंग करना चाहते हैं आप देखते हैं कि उसका इम्पैक्ट कहाँ पे पड़ता है. फॉर एग्जांपल यू चेंज द स्टॉक लेवल्स, तो उसका प्रॉफिटेबिलिटी में इम्पैक्ट होता है, होल्डिंग लेवल में इम्पैक्ट होता है. तो क्या किस मतलब हाउ डू यू असेस इट साइमल्टेनियसली, वो आपको इंडिविजुअली डिटरमाइन करना पड़ेगा. सो आई डोंट नो एनी सॉफ्टवेयर बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग इट, so I still use standard CMA format. I think there are lot of queries कि आप अपना PPT प्लीज शेयर करें, और CMA डाटा या जो आप एक्सेल मॉडल्स की आपने बात करी है, so we request you to please share them so that we can share to the participants. We will share through the link in YouTube channel. Sure सौरभ जी, हम आपसे ले लेंगे. बाकी आपको कुछ कोई और आपको कुछ फॉर्मेट चाहिए, इंडिविजुअल कैन ऑलवेज पिंग मी एट माय ईमेल आईडी व्हिच इज vibhor.kapoor. मैं आपको विभोर जी का ईमेल आईडी और फोन नंबर आपको एक बार शेयर कर देता हूं. दैट इज ऑन द स्क्रीन. मोबाइल नंबर एज वेल एज ईमेल आईडी. विजय कुमार गुप्ता, दिस इज माय मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, एंड सौरभ गुप्ता मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी. सर नेक्स्ट क्वेश्चन सुशील कुमार जी का है, तो वो कह रहे हैं कि जब डीपी कैलकुलेट करते हैं तो मोस्ट ऑफ द बैंकर्स रिड्यूस क्रेडिटर्स फ्रॉम स्टॉक डेटर्स, लेकिन SBI reduces creditors only to the extent of creditors in excess of creditors projected in CMA data. This leads to different DP in the same stock statement for different banks. How do you view this and what is the better practice? सर अगर कंसोर्शियम बैंकिंग अरेंजमेंट की हम बात करें, जिससे हम लार्ज कॉर्पोरेट होते हैं, तो जो स्टॉक जो कंसोर्शियम लीडर है वो डिफाइन करता है. तो अगर आपका तो वो ऐसे ही डिफाइन होगा, अगर कंसोर्शियम लीडर कोई और है तो वैसे ही डिफाइन होगा. बट दिस इज अ नॉर्मलिटी. सो नॉर्मली देयर आर टू डिफरेंट फॉर्मेट्स जो नॉर्मली शेयर किया जाता है अलग अलग बैंकर से विद द सेम सेट ऑफ डेटा, कि बेसिकली ये डेटा ऐसा है एंड इंडिविजुअल बैंक से डिटरमाइन देयर ओन डीपी. बट ये नॉर्मली we have to go with the banking norms only. जो भी बैंक की पॉलिसीज सब जिस फॉर्मेट में उन्होंने मांगा या जो भी फॉर्मूला, we need to follow them even if it may be different from bank to bank. Sure, गुरदीप मुखर्जी पूछ रहे हैं ECB is with BG और without BG? बैंक गारंटी के साथ है ECB या विदाउट बैंक गारंटी? ECB can be with BG and with दोनों तरह से हो सकता है. मैं नहीं क्वेश्चन समझा सर इनका. ठीक है सर. ये MSME का अमेंडमेंट एक्ट की आपने बात करी, ये कब से एप्लीकेबल होगा, ये पूछ रहे हैं राज मित्तल जी. ये अप्रूव नहीं हुआ, जब अप्रूव होगा सर तब से एप्लीकेबल होगा. अभी तक ये अप्रूव नहीं हुआ सर. सर ये पहले भी शायद हमने डिस्कस किया है. वरुण कैकनी जी पूछ रहे हैं कि ड्यू टू COVID-19 while calculating DP there is a chance that we have stale stock and overage debtors. How to keep a check on that? So बात करते इस बारे में. करेक्ट. डेफिनेटली मेरे हिसाब से इस 3 महीने के पीरियड को काउंट ही नहीं किया जाएगा फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ओल्ड स्टॉक और ओल्ड डेटर्स एज वेल. इंटरेस्ट वेवर नहीं है, बाकी हर चीज के लिए 3 महीने को काउंट नहीं किया जाएगा. So next question is from Arjav Jain ji. He is asking your views on one-time restructuring scheme for in view of this COVID-19. Any view of yours on? I have to get back to him on that. If he can provide specific data. इस पॉइंट के ऊपर सबसे पहली चीज तो ये कि इंसॉल्वेंसी के प्रोविजंस के अंदर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 1 लाख की लिमिट को बढ़ा के 1 करोड़ कर दिया गया है, जिससे कि इंसॉल्वेंसी पेटिशंस कम हो जाए. ड्यू टू COVID-19 फाइल होनी ना शुरू हो जाए. पता लगा उसके चलते काफी बिजनेस ही बंद हो जाएंगे. एंड इन ए डे और 2 मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कैन कम विद 6 month सस्पेंशन ऑफ सेक्शन 7, सेक्शन 9 एंड सेक्शन 10 कि 6 महीने के अंदर अंदर ये 3 महीने नॉन ऑपरेटिव हो जाएंगे 3 सेक्शंस, ताकि कोई इंसॉल्वेंसी पेटिशन 6 महीने में न डाल सके, ताकि 6 महीने बाद कुछ रिवाइवल होता है इंडस्ट्रीज का तो वो एटलीस्ट इस इंसॉल्वेंसी के नेगेटिव इंपैक्ट से बच जाएंगे. I think there's an RBI circular which says that अगर आपका total loans is less than 20 crore, so one time rehabilitation scheme MSME की थी. I need to check that out. उसमें आपको बताना पड़ेगा कि basically 20 करोड़ या 25 करोड़ से
आपका नीचे loans थे, and then you can apply it without classifying as without classifying yourself as an NPA or substandard asset. But I will get back to him. क्वेश्चंस अभी काफी सारे हैं and I think the list is संजय endless. जैन जी का एक क्वेश्चन था इसके अंदर कि जब सिविल के अंदर if there is a misreporting and his record is bad due to misreporting, how it will be handled with the civil? I think in my opinion civil की proper site है, proper contact email IDs हैं, आप उन पे mail कीजिए along with the control number of your civil report. I have done this from last 15 years. अगर आप control number के साथ में आप information देंगे, then there is a communication between company as well as the civil. And after asking the required document, you have to submit that document, and after verifying that records, they will correct the civil record. There is no any dispute. So Vibhor ji, we thank you a lot. काफी सारे questions हैं. I think we will try to take up through our YouTube channel, or we may tell you about those questions so that we are able to answer them. So we scheduled this seminar till 5:30 only, so we would not like to stretch much, and we thank you a lot for handling queries in such a easy going manner and giving your thoughts on today's scenario also. So I request Vijay Gupta ji to please extend vote of thanks. Thank you, Vibhor ji, for giving such wonderful presentation on the bank finance, and thanks to each and every attendees who has attended this webinar, as well as who are watching on our live YouTube link. So many of the attendees requested for the PPTs as well as the Excel template of CMA. All these Excel template and PPT will be shared to them, and it will the link of that PPT and Excel template will also be available in the YouTube channel. So I request kindly subscribe to the YouTube channel also, and thanks everyone. Thank you, Vibhor ji. Thank Thanks you, a lot. everyone. Thank you. Thank you, everyone. Sorry, thank you, everyone. Thanks a lot.